Hello everyone, good morning and welcome to another session of PIB. I hope that all of you remember last class of PIB. Yeah, so in this we will discuss further some very interesting topic which are very important for our prelims as well as mains. And let me give you a brief review of last session which we have in last week. So if you look at, if you remember the last weekend where we discussed about PM Vani, that how Wi-Fi in public arena will being means government is planning to have this Wi-Fi connectivity in the public domain so that everyone can utilize it, right? Because we discussed about Digital India, why this Wi-Fi is required, how it will work, what is government is planning. PM Vani initiative we launched. We saw uh, this strategic petroleum reserve, and we discussed that why these strategic petroleum reserves are important. और मैंने आपको ये भी बताया था कि अभी ग्लोबल लेवल पे कितने हाइड्रोजन पंप्स बन चुके हैं और क्या इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट है. सो वी हैव डिस्कस इन दैट कंटेक्स्ट और कहाँ कहाँ उनकी लोकेशन है. दैट पादुर में हमने देखा था, मैंगलुरु में हमने देखा था. सो वी हैव सीन दैट इन इंडिया देयर आर 5 लोकेशंस आर देयर एंड वी हैव आल्सो सीन द conditions, right? That what are the conditions means at what are the conditions required, their capacity also we have seen that कि कितना million metric ton capacity है, सबसे ज़्यादा किसका है, we have seen, and we have discussed that in 2 phases the project is means first phase is over, second phase is been now undertaken by the government. फिर हमने उसके बाद और भी देखा था, जैसे हाइड्रोजन एनर्जी का देखा था, दैट हाइड्रोजन एनर्जी कॉन्फ्रेंस वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री. तो वेरियस PSUs participated in that, oil PSUs, energy PSUs, this power generating PSUs. So that like-minded peoples come together, not just government but also private, means participants were from Jindal Steel, Tata Steel. So we discuss all these things, right? So continuing with that, and I told you that in next class, because today we have some topics which are very important, and every year UPSC is asking question on these lines. So today we will start with GI Tech topic. Basically Delhi Heart organized Adi Mahotsav. If any one of you have visited that place in Delhi, so every year Ministry of Tribals organize kind of market exhibition, you can say. So at this exhibition they display the artwork, the peculiarities of tribal culture. तो वहाँ पे एक सेल होती भी है, एक डिस्प्ले भी होता है. ट्राइबल्स जो पीपल हैं उनको अपनी कला को दिखाने का एक मौका भी मिलता है. तो उस लिहाज से भी ये इम्पोर्टेंट है. दूसरा इसमें इस बार ये भी खास है कि जो इस न्यूज़ को कवर करने का जो उद्देश्य है, द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड कवरिंग दिस न्यूज़, दैट GI टैग का हर साल एक नया क्वेश्चन आता है, पूछ लेते हैं. और इस बार उत्तराखंड के 6 जो न्यू प्रोडक्ट है उनको शामिल किया गया, उनको भी GI टैग मिला है. तो जब भी कोई ऐसी न्यूज़ होती है, ऐसा कोई नया डेवलपमेंट होता है, सो एज अ सिविल सर्वेंट एस्पिरेंट दिस इज योर ड्यूटी दैट यू शुड फॉलो दिस काइंड ऑफ न्यूज़. एंड आई विल शो यू दैट हाउ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड. पास्ट ईयर का क्वेश्चन भी मैंने पिक किया हुआ है, वो हम देखेंगे. उसके बाद काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं मेंस के लिए. जैसे एज यूजुअल वी विल डिस्कस दैट how that news will be important for prelims, how that news will be important for mains. So let's begin with our first chapter that is on GI tag. So let me keep it on slide mode. Yeah, so here you can see I have picked up one picture for you that so that you can see and appreciate. तो इस तरह से जो आप बोल सकते हो डिस्प्ले हो रहा है, जो एक एग्जीबिशन है, तो इस तरह का कुछ इसका जो उन्होंने एक मॉडल स्ट्रक्चर तैयार किया है. जैसे आप उनकी दुकान पे जाओगे या उस स्टॉल पे जाओगे तो उसको उन्होंने इस तरह से दिया. देखिए आप लिखा भी है tribesindia.com, और यहाँ पे आप देखते हो क्राफ्ट ऑफ इंडिया है. मीन्स ये आप दिल्ली हाट में जाओगे तो इस तरह का उनका आउटलुक है, इस तरह डिस्प्ले है. तो आदि महोत्सव का पार्ट है. जस्ट टू गिव यू एन आइडिया. देखिए पिक्चर देखने से क्या होता है, कई बार चीज़ हमारे दिमाग में स्टोर हो जाती है, क्योंकि एक तरह से माइंड में इमेज कैप्चर हो जाती है, बिकॉज दिस इज
ability of human mind that we capture something, then the ability to retain it becomes quite high. तो आप उसको याद कर सकते हो कि हाँ ऐसा कुछ मैंने देखा था, यू कैन मेमोराइज इट. तो उस लिहाज से ये बस एक वो है आपको आइडिया देने के लिए. बाकी ये देखिए, ये मतलब 16 to 30 नवंबर चला है ये प्रोग्राम आपका 2021. और दिल्ली हाट टाइम भी रखा आई एन ए मेट्रो स्टेशन. आप अगर जाते हैं साउथ दिल्ली में तो वहीं उसके पास में ही है, 11 AM to 9 PM. और ऐसी जगह जाना भी चाहिए बिकॉज दीज थिंग्स गिव्स अस एक्सपोजर. क्योंकि क्या होता है कि हमारे पास टाइम नहीं है कि हम एक एक जगह जाके देखें या एक एक प्लेस विजिट करें. वी डू नॉट हैव टाइम, वी डू नॉट हैव दैट लग्जरी एट आवर एंड दैट वी विजिट दीज थिंग्स. बट यस, since these exhibitions is being organized by the ministry itself and it is picking up the best things for us, so we can at least spare some time if we are in Delhi or we are in nearby Delhi to see that okay, what is the culture of India, because people from different part of the world, different part of the country visiting these places and we find something interesting. तो इसके पर्पस भी हम देख सकते हैं कि ऐसे, और इसको आप मेंस में आंसर राइटिंग में ऐसे में कभी भी यूज कर सकते हो that what are the schemes, objectives undertaken by the government. So in that category you can keep this kind of news, right? So अब यहाँ पे जो आप देखिए इस तरह से स्टॉल लगा होता है उन लोगों का. महाराष्ट्र, यू कैन सी दैट देयर इज अ स्टॉल ऑफ महाराष्ट्र, देयर इज स्टॉल ऑफ तेलंगाना, देन छत्तीसगढ़, देन दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू छत्तीसगढ़ ओनली. सो you can see that this guy, and you can see there are some artifacts also, some craft work is also there. Then here you can see some brass work is there, right, in Chhattisgarh. Then here you can say that there is some artistic display of some mascot is there. Similarly here you can see in Telangana, I think this is sari, so a display of sari, maybe a silk sari of some particular place. Similarly in Maharashtra you can see that some work on carpet and some books are also there. So means any publication or something. So this way means you can appreciate the thing that okay, and when we visit this thing, it helps us to know about India. And as a part of this country, as a citizen, as I said, we should also know these things, that okay, this thing is happening, because when we know something, we are in better position to appreciate it, right? So that is one part. So basically now I am coming, because so far I have given you a brief background that okay, many of you who are watching it for the first time, and maybe you feel that sir, why are you telling these things, why this art is important? Because you see in prelims also art and culture, it is important. In mains also again you have art and culture in your mains. Every year one question come in mains also, 10 marks, 15 marks, 12 marks, it varies. Similarly in prelims also one question on GI tag itself, because if you look at past 4 to 5 year paper, then you would find that 1 or 2, 3 questions are there. Every year means one question here and there is there. Either it is on directly on GI tag, or it is somewhere related to tribes or somewhere. So if you see that UPSC want you people to know that what is tribal culture, what any act, as we have discussed, PISA Act. If you remember, we discussed PISA Act. Similarly, Forest Right Act. We have discussed, and we also discussed in the first few of our sessions about this Janjati Gaurav Divas. I hope that many of you have remembered that, or still able to remember that. So we discussed how Birsa Munda birth anniversary is celebrated as this Janjati Gaurav Divas. So if you see that government itself is so much emphasizing on this to boost this tribal culture, to promote it, so that mainstream people, because what happens that, as I discussed earlier also, that they somewhere in the process of development they left out due to various reasons. There is a political reasons, there are economic reasons, there are cultural issues also, but now they are part of our society, they are own brother and sister. So this is our duty that we should take them along in this journey of development. So in that way, whenever you read any news, you should connect it to different dimension. It is not like that you are here for only prelims question, you are here only for just mains question. You have to see a wider picture, because in UPSC a person who scores good marks is the one who can connect the things. So this is the thing which you have to see, right?
तो मैं जो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो यही है कि हम जो भी न्यूज़ कवर कर रहे हैं उसका एक ब्रॉड ऑब्जेक्टिव भी है, आपको इंफॉर्मेशन देना भी, क्योंकि दिस इज पीआईबी सेशन और हमने बात की हम कॉम्प्रहेंसिवली कवर करेंगे, तो हमें पता होना चाहिए कि हम ये न्यूज़ पढ़ क्यों रहे हैं। ये ऐसा तो नहीं है कि खाली we are doing it for the sake of doing something, or we are just doing it for as a time pass thing. So it is not a time pass activity, it is something which is serious. और अगर आप इसको जितने भी हमने चीज़ें डिस्कस की हैं, अगर आप स्मार्टली उनको यूज़ करोगे आंसर राइटिंग में, और डायरेक्ट क्वेश्चन भी उनसे आएंगे ही आएंगे, आप यू विल फाइंड द डिफरेंस, बिकॉज इन द पास्ट वी हैव सीन दिस थिंग. So coming back to this news, because why these things are important, because once we know that okay, this is the reason why we should read this news, this is the reason that why we should pick such kind of news, or then only you can appreciate the thing, then only you would remember, or then only you can appreciate it, that okay, yes, this is something which I have to work upon, this is where, or this is the demand of the exam. So this is what is the message behind this news. So as I mentioned in the beginning also, that 7 new GI tagged products from Uttarakhand. So 7 new GI tagged products got GI tag. So not these are limited, because many other states have received, but in this heart especially they are displayed. So we are covering that. Others, by the time when you will appear in the exam, some more products may get GI tag. But as of now, these 7 have got this new GI tag, right? 7 new product. So, and UPSC can ask any one of them, it can match them with the previous one also, and it can ask any question that okay, which of the following has received GI tag, in that way. So you should have an idea at least that okay, yes, I have heard about this news, yes, मैंने कहीं पढ़ा है कि इस बार इसको GI tag मिला है. In that sense you should remember. और मैंने इसलिए इसके पिक्चर्स भी कलेक्ट किए हैं कि if you look at those pictures then you can easily remember the thing. हमें अगर हम किसी चीज़ को देख लेते हैं कि हाँ ये जो GI टैग मिला है ये क्या है, खाने की चीज़ है, कोई टॉय है, या कोई कारपेट है, कोई हैंड क्राफ्ट है, इस तरह से, या कोई लिटरेरी वर्क है, तो एक बार पढ़ लेते हैं. 7 न्यू GI टैग प्रोडक्ट्स फ्रॉम उत्तराखंड कंसिस्टिंग ऑफ अयप्पन क्राफ्ट. सो आप देखिए ये नाम जो है ना, स्टार्टिंग में आपको अजीब से लग सकते हैं कि अयप्पन है क्या है, तो आपको याद रखना कि अयप्पन मैंने उत्तराखंड में पढ़ा था. टामटा प्रोडक्ट है, रिंगल क्राफ्ट है, थुलमा है, भूटिया दान कारपेट है, राइट, और आपका चायूरा ऑयल है, मुंशियारी राजमा है. तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको एक बार दिमाग में जब आप सुनो उस चीज़ को तो रिकॉल करने में आसानी रहे. तो अयप्पन क्राफ्ट, अगर अयप्पन क्राफ्ट कभी आप पेपर में देखते हो तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि यार ये अयप्पन क्राफ्ट मैंने उत्तराखंड GI टैग में पढ़ा था, हाँ इसको GI टैग मिला है अयप्पन. कोई कई बार होता है कि हम प्रोनाउंसिएशन से या स्पेलिंग सोचते हैं अयप्पन यार साउथ इंडियन तो नहीं है, बट इट इज़ फ्रॉम उत्तराखंड, राइट. नेक्स्ट इज टामटा. टामटा प्रोडक्ट, टामटा आप याद सकते हो. और एक चीज़ और भी कर सकते हो, जैसे आप ये जो वर्ड्स है ना इनकी कोई शॉर्ट फॉर्म भी बना सकते हो, कि जैसे इनको ना कि जैसे AI का आई ले लिया, आईटा, आईटारी, ऐसे कुछ, मतलब कुछ इस तरह की एक्रोनिम बना सकते हो, एक ऐसी ट्रिक बना सकते हो जिसको निमोनिक्स बोलते हैं, उसको आप यूज़ कर सकते हो ताकि उनके शुरू के कुछ वर्ड्स पिक कर लिए, एक कोई ऐसा वर्ड बना लिया जिसको आप कोई किसी चीज़ से लिंक कर सकते हो, कोई एक किसी सॉन्ग से लिंक कर सकते हो, मतलब ट्रिक बना सकते हो अपनी याद करने की. जी, तो उसी में भूतिया दान कारपेट. तो भूटिया तो का तो देखिए ऐसा कि भूटिया एक कम्युनिटी भी है जो पहाड़ी इलाके में बसती है, उनको भूटियाज बोलते हैं, ट्राइब्स भी है, भूटिया ट्राइब्स उत्तराखंडी फेमस, उस वे में भी आप आ सकते हो. थुलमा हम देखेंगे कि थुलमा है क्या. चायूरा ऑयल, तो अगर आप में से किसी ने यूज़ किया हो चायरा ऑयल, कि काफ़ी मतलब न्यूट्रिशियस भी होता है, काफ़ी हेल्दी होता है, मल्टीपर्पज से यूज़ होता है ये, इसके एंटीबैक्टीरियल फंक्शंस भी हैं, उसको भी हम देखेंगे. मुंशियारी राजमा, तो राजमा आपको पता है नदर्न रीजन में काफ़ी चलता है, बट इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि पंजाब में राजमा ज़्यादा खाते हैं या जम्मू कश्मीर में तो उत्तराखंड में होगा नहीं. मुंशियारी राजमा की एक अपनी क्वालिटी है, एक अपनी एक खासियत है, वो आई विल टेल यू व्हेन आई विल शो दैट पिक्चर. एक चीज़ और देख लीजिए कि द GI प्रोडक्ट्स फीचर्ड एट द ट्राइब्स इंडिया आदि महोत्सव इंक्लूड रेनाउंड एक्विजिट आइटम्स सच एज राजस्थान ब्लू पॉटरी. अब इसमें कुछ चीज़ें, क्योंकि here in this article I will show you these 7 GI tag, I will tell you these about these things, but GI tags are so many, क्योंकि कई सालों से मिल रहे हैं, कई सालों से होते आ रहे हैं. तो
ये राजस्थान की जो ब्लू पॉटरी है ये भी इसमें है, तो आपको पता होना चाहिए। अच्छा, राजस्थान की ब्लू पॉटरी भी जीआई टैग्ड है, ओके। तो बिकॉज व्हाई आई हैव केप्ट दिस इंफॉर्मेशन सो दैट यू आल्सो सी कि और भी चीजें हैं जीआई टैग में। अगर इफ एनी वन ऑफ यू हैव गॉन थ्रू अर्लियर देन इट्स फाइन, बट इफ एनीवन हु इज वाचिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, एनीवन हु इज लिसनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम कि हाँ जीआई टैग ऐसी कोई चीज भी है, तो आप लोग इसको एक बार नोट कर लो कि हाँ हमें इसके बारे में भी पढ़ना है। जब आप अपना गूगल कर सकते हो इसको, तो क्या क्या है। राजस्थान ब्लू पॉटरी एक तो देखिए, ये आप गूगल करिए, द कोटा दरिया फैब्रिक, एक आपको ये करना है। मध्य प्रदेश चंदेरी, आपको बताना है चंदेरी क्या है। चंदेरी क्या है आपको बताना है, मुझे कमेंट बॉक्स में भी आप बता सकते हो कि चंदेरी क्या है। एंड महेश्वरी सिल्क, तो अगर महेश्वरी सिल्क चंदेरी सिल्क ऐसे कुछ आता है, देखो सिल्क है ये दोनों, अगर ऐसा कुछ आता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि यार ये चंदेरी महेश्वरी ये तो एमपी में था, सर ने पीआईबी क्लास में ऐसा कुछ बताया था। ब्लू पॉटरी आ जाए और पूछे ब्लू पॉटरी कहाँ की है, तो आपको पता होना चाहिए ब्लू पॉटरी हमने राजस्थान में सुना था, राजस्थान में पढ़ा था। दिस वे योर इट शुड स्ट्राइक टू योर माइंड, यस आई हैव हर्ड समवेयर इन दैट पीआईबी क्लास व्हेन सर वाज डिस्कसिंग दैट टॉपिक ऑफ टैक्स आदि महोत्सव टॉपिक। Then Bach print, again it is related to MP. Then I hope that some of you have heard about Bach caves also. So Bach print, Bach caves, very important. Bach is a place in MP which is very important from cultural perspective, cultural point of view, right? So that is the thing where you have to see. Odisha's Patta Chitra, on wooden floor, on wooden stool or something, or a wooden tap like thing. उसके ऊपर क्या होता है कि चित्र, पट्टा चित्र मीन्स दृश्य बनाना, पिक्चर बनाना, पेंटिंग बनाना, तो पट्टा चित्र दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है, पट्टा एंड चित्र। तो वो भी आप देख सकते हो कि कैसा है, तो इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। कर्नाटका बिद्री वेयर, पता होना चाहिए बिद्री वेयर किस तरह का वेयर है, मतलब जैसे आप पीतल के काम होता है, कहीं पे कांच का काम होता है, ऐसे फिरोजाबाद में, और भी हम इसमें भी देखेंगे, इसमें भी एक जगह यहाँ पे कॉपर पे काम होगा, कॉपर के ऊपर, उसके ऊपर ऐसे बिद्री वेयर भी एक तरह का वो है। तो आपको देखना बिद्री वेयर क्या स्टील के ऊपर काम हो रहा है, पीतल के ऊपर काम हो रहा है, या कांस तांबे के ऊपर, कॉपर ब्रॉन्ज, किस तरह का, तो बिद्री वेयर आपको सर्च करना है। ठीक, बनारसी सिल्क तो बहुत फेमस है, बनारसी साड़ी, बनारसी सिल्क फ्रॉम उत्तर प्रदेश। दार्जिलिंग टी, ठीक। अच्छा, इसी चीज पे मुझे ये बताइए कि आप लोगों को मैं 1-2 मिनट का समय दे रहा हूं कि सबसे पहला जीआई टैग किसको मिला था। जल्दी, अगर आप में से किसी को पता है तो आप लोग सर्च कीजिए और बताइए कि सबसे पहला जीआई टैग किसको मिला था। वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, लेट मी सी दैट हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट दिस। कमेंट बॉक्स में आप डाल दीजिए। Okay, so I can see some responses. Yes, very good. So some of you have given correct answer. So the first GI tag was received by दार्जिलिंग टी। सबसे पहले दार्जिलिंग टी को ही सबसे पहला जीआई टैग मिला था। जो दार्जिलिंग टी है काफ़ी फेमस है और इसकी अपनी एक क्वालिटी है, एक अलग एरोमा है, जो आपकी खुशबू है टी के जो नेचुरल कलर है। और आई होप कि काफ़ी लोगों ने अगर इस दार्जिलिंग टी को टेस्ट किया हो, दे नो इट बेटर। तो दार्जिलिंग टी वॉज द फर्स्ट वन विच गॉट जीआई टैग, ठीक है। देन काला जीरा फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। तो जीरा इज अ वेरी कॉमन थिंग इन आवर हाउस, इन आवर स्पाइसेस, इन आवर किचन्स। सो बट काला जीरा फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, इफ
it comes that from which state it belongs to. It is Himachal Pradesh. Then the extremely spicy Naga chili. So chili is again very much part of our daily food and our cuisine in our kitchen. So but Naga chili extremely spicy. This word adjective attached to this word, extremely spicy Naga chili, it also received GI tag. Because why we are telling these things, because these things were also there on the display. ये जो एग्जीबिशन हो रही थी वहाँ पर, उसमें ये सब चीज़ें थी वहाँ पे. तो अगर कोई चीज़ को गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, किसी चीज़ को गवर्नमेंट दिखा रही है, देन इट इज़ आवर ड्यूटी टू look out for those things. At least we should aware about those things, because UPSC has said in its syllabus also that any aware person of UPSC should know these things. पहली चीज है, ठीक. तो आपको ये सब चीज़ें इस प्रोडक्ट में डिस्प्ले हुई हैं, तो क्योंकि ये वहाँ पे थी, वहाँ पे एग्जीबिशन में, तो हमें ये दिस इज आवर ड्यूटी कि हम ये सब चीज़ें जाने. एटलीस्ट कुछ तो आपको पता होंगी, कुछ आप और जानो. हो सकता है कि आपको ना पता हो कि बिद्री वेयर किसको बोलते हैं, हो सकता है कि ये जो स्पाइसी चिली है ये नहीं पता हो आपको, पट्टा चित्र किसको बोलते हैं, कैसी किस टाइप का पट्टा चित्र. देखिए यूपीएससी ऐसा भी हो सकता है खाली ये ना पूछे आपसे कि पट्टा चित्र कहाँ की है, वो हो सकता है पट्टा चित्र के बारे में ही पूछ ले. क्योंकि आर्ट एंड कल्चर में यूपीएससी में आस्क यू दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन आल्सो, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट पट्टा चित्र आर करेक्ट. एंड इट में आस्क लाइक दैट इट इज पेंटिंग ऑफ गुजरात. It is a painting which was practiced during the Rajputana times, during Rajput rules, or during Man Singh, or during Solanki's rules, Solanki dynasty. Likewise, they can. But if you have not read these things in such a manner, तो आप उसको कर ही नहीं पाओगे. आप सोचोगे कि उड़ीसा में पढ़ा था हमने तो खाली, अब पता ही नहीं ये सोलंकी के टाइम का था, पाल डायनेस्टी का टाइम का था, या कलिंग जो फेमस किंगडम है उस समय का जो उड़ीसा में था उसके टाइम का है. तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे. तो सो दिस इज आवर ड्यूटी जब हम कोई न्यूज़ पढ़ते हैं, बिकॉज एवरीथिंग वी कैनॉट कवर इन दिस पर्टिकुलर टाइम बिकॉज वी आर डिस्कसिंग जीआई टैग. बट आई कैन गिव यू द क्लूज, आई कैन गिव यू द हिंट कि आपको ये भी देखना है, आपको ये भी करना है. सो इट इज अप टू यू कि आप कैसे उस चीज को कर रहे हो. ठीक है. सो एंड ट्रस्ट मी, अगर आप इस तरीके से पढ़ोगे, slowly you will cover lot of the things, and this is what UPSC demand from you. तो आपको पढ़ना है इस तरीके से. इसलिए जब हम न्यूज़ डिस्कस कर रहे हैं तो साथ साथ ये भी जानना बहुत जरूरी है. ये हो गया. एंड द लार्ज कार्डेमम फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट. तो देखिए लार्ज कार्डेमम, इलायची हम लोग बहुत खाते हैं, हमारे यूज हम करते रहते हैं, लेकिन लार्ज कार्डेमम फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट उसको भी मिला हुआ है. यहाँ पे कोई ऐसा स्टेट पर्टिकुलर नहीं है, नॉर्थ ईस्ट में पाई जाती है. तो नॉर्थ ईस्ट में कोई एक स्टेट पर्टिकुलर नहीं है कि मेघालय, मिजोरम, नॉर्थ ईस्ट रीजन को दिया हुआ है. जीआई टैग्स आर रिकॉग्नाइज्ड बाय डब्ल्यूटीओ. अब ये देखिए जीआई टैग का इंपॉर्टेंस क्या है, मैं इसका भी आपको बता दूं. जीआई टैग एक्चुअली एक एक्ट है जो आपका जीआई टैग को लेके करता है. तो उसमें आपके जीआई टैग्स हो गए, कॉपीराइट हो गया, ट्रेडमार्क्स हो गए, ये सबको लेके एक्ट है. तो एक्चुअली इट इज अ पार्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. आईपीआर को हम करते हैं, ट्रिप्स है, ट्रेडेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट. डब्ल्यूटीओ का अपना एक उसमें एग्रीमेंट है, अपना एक ये है. तो उसमें क्या है कि डब्ल्यूटीओ ने कुछ ऐसी चीज़ों को रिकॉग्नाइज किया हुआ है जो किसी जगह को रिप्रेजेंट करती हैं, जो किसी इंडिविजुअल के एफर्ट्स को रिप्रेजेंट करती हैं. समवेयर इट शोज द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफ ए पर्सन. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मीन्स इट involves the creativity of an individual or a group of individual or an organization. ये आप देखो कि जब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बात करते हैं इसमें काफ़ी डिबेट भी चलती है कि इसको प्रोटेक्ट करना चाहिए. क्योंकि देखिए आप अगर कोई काम कर रहे हो, आपकी कोई मेहनत है, अगर उसको कोई इंसान कॉपी करके उसका क्लेम लेके पैसे कमा रहा है, तो आपने जो मेहनत की है तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि मेरे संग जो मेरा जो शेयर था वो किसी और ने छीन लिया. मेहनत मैंने की और खा कोई और रहा है, या मीन्स मैंने पूरी मेहनत की, उसका फल कोई और ले रहा है, तो मुझे ड्यू क्रेडिट नहीं मिल रहा है. और इसके पीछे काफ़ी और भी रीज़न है. जैसे एक एग्जांपल के लिए मैं आपको दूं छोटा सा, कि सपोज मान लीजिए आपने किसी दवा को बनाने के लिए 100 करोड़ रुपए लगाए, 100 करोड़ रुपए. अभी इस दवा की सेल आपकी शुरू ही हुई थी, आपने सपोज 100 में से 10 करोड़ का बिजनेस कर लिया था आपने, अभी आप ठीक ठाक जा रहे थे. अभी अचानक क्या हुआ कि आपका कोई कॉम्पिटिटर आया,
और जो मैं एक बार एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि उसमें क्या हुआ कि उसने आपको फॉर्मूला चुरा लिया, ही जस्ट स्टोल योर फॉर्मूला कि ये दवा बनाई कैसे आपने। कोई फॉर एग्जांपल आपने कोरोना की वैक्सीन बना दी है ना, वो वैक्सीन ए। अब ये वैक्सीन आपने बनाई, 100 करोड़ रुपये आपने लगाए, आपने मेहनत की, रिसर्च की दिन रात और लोगों को काम पे लगाया। अब इससे क्या हुआ कि कोई दूसरा कंपनी है, ये कंपनी कोई सपोज मान लीजिए एक्स है, एक और कंपनी वाई आई, वाई ने क्या किया आपका फॉर्मूला कॉपी किया, उसने भी मेडिसिन बना दी। आप बेचे थे सपोज 100 रुपीज़ 10 टैबलेट्स, वो आई उसने कहा कि हम 1 रुपये में 10 टैबलेट देंगे। अब आप देखिए इसको तो मेहनत करनी नहीं पड़ी, इसको क्या खाली प्रोडक्शन करना है, इसको दवा मैन्युफैक्चर करनी है, बस इसको मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट निकालनी है। इसने क्या जो पहले पैसा खर्चा किया, मतलब जो आपको अगर थोड़ा सा आइडिया हो कि जब हम कोई भी मेडिसिन बनाते हैं या कोई भी हम मेडिकल रिसर्च करते हैं तो उसमें हम ट्रायल्स भी करते हैं, वी कंडक्ट सम ट्रायल्स ऑन सम लिविंग क्रिएचर्स, इट इन्वॉल्व्स ह्यूमन बीइंग आल्सो, टू assess that whether that medicine which is being developed it is working fine or not, to know these things, right? In that sense there is a cost involved in it, cost incurred in it, because अगर आप किसी के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो आपको उसकी लाइफ सिक्योरिटी, उसके कोई भी इश्यूज हैं वो लेना पड़ेगा, प्लस उसको कुछ मॉनेटरी बेनिफिट देना पड़ेगा, अदरवाइज व्हाई अ पर्सन विल वर्क फॉर यू। सो in a broader sense I am just trying to say कि आपकी कुछ कॉस्ट प्रोडक्शन के अलावा भी होगी, नॉट जस्ट प्रोडक्शन। तो अब अगर आप इसमें देखते हो तो इसको खाली प्रोडक्शन में लगा, लेकिन इसने जो जो ये 100 रुपये ले रहे थे इसमें इनको अपनी पुरानी कॉस्ट को रिकवर करना है। अब इसने जब दवा बना दी और वहाँ पे मान लीजिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, अब ये लॉस में चलने लग गया कि लोग क्या करेंगे, लोग सीधे इसको खरीदेंगे, है ना, लोग इसको खरीदेंगे। या एक तो ये होगा कि पैसे के चक्कर में, या ऐसा भी हो सकता है कि ये इंसान क्या करे, इसको 1 रुपए की 10 टैबलेट ना बेचे, ये इसको 100 रुपए की ही बेचे 10 टैबलेट, जितना भी ये बेच रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए कस्टमर का नुकसान भी है कि चलो ये तो ओरिजिनल कंपनी है, ओरिजिनल प्रोडक्ट ओरिजिनल होता है। आप कभी भी देखो, इफ़ यू डू एनी काइंड ऑफ शॉपिंग देन यू नो दैट हाँ ओरिजिनल होता है, कॉपी का कोई भरोसा नहीं है। चाहे आप कपड़ा ले लीजिए, चाहे शूज़ ले लीजिए, कोई भी चीज़ आप ले लीजिए, तो उसमें आप देखोगे कि एक ओरिजिनल चीज़ की एक अलग ही आपको क्वालिटी दिख जाएगी, क्योंकि उसमें हार्डवर्क छुपा होता है, उसमें एक प्रोसेस होती है और कॉपी रहती है। तो यहाँ पे क्या हुआ, कस्टमर ने अगर मान लो आपने ये 100 रुपये वाली टैबलेट ले ली और आप उतना ही पे करो जितना ओरिजिनल कंपनी दे रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, आपको पता नहीं है कि ये कॉपीड है कि क्या है, क्योंकि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट नहीं है, IPR। तो कस्टमर को यहाँ पर लॉस हो जाएगा कि कस्टमर डुप्लीकेट चीज़ लेके आ गया उतनी रुपए की, 100 रुपए की। सस्ते में तो चलो ठीक है, सस्ता है, मिल रहा है, लोकल है, हम लोकल चीज़ क्यों खरीदते हैं कि वो चीप होती है एज कम्पेयर टू ब्रांडेड प्रोडक्ट। तो यहाँ पे मैं वही चीज़ समझाना चाह रहा हूँ। तो GI टैग को WTO ने रिकॉग्नाइज किया हुआ है इसी कि जो डिजर्व करते हैं उनको बराबर मॉनेटरी बेनिफिट, अदर बेनिफिट्स मिलना चाहिए, मार्केट में एज मिलना चाहिए, तो इसी वजह से GI टैग। ऐसे ही मान लीजिए अभी चंदेरी साड़ी, महेश्वरी सिल्क साड़ी है, अब चंदेरी के लोग इतनी मेहनत से सिल्क बना रहे हैं, इतनी मेहनत से बेचारे कपड़े को जो है क्राफ्ट को डेवलप कर रहे हैं, वो निटिंग कर रहे हैं और वीविंग कर रहे हैं, जो वीवर्स वगैरह हैं ये सब इतनी मेहनत से सिल्क को उगा रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, सिल्क वॉर्म रियरिंग हो रही है। अब वहाँ पे क्या हुआ, एक कोई भी मान लीजिए चाइनीज़ कंपनी आती है और चाइनीज़ कंपनी ने क्लेम कर दिया, या ऐसे बता के नहीं, मतलब एक चाइनीज़ प्रोडक्ट उतार दिया, किसी ने भी ऐसे उतार दिया, या मान लीजिए फॉर एग्जांपल सूरत से कोई वो आया, यहाँ पे आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, आई एम नॉट एंटी एनी रीजन और एनी समथिंग, जस्ट फॉर सेक। अब सूरत में भी आपको पता है काफ़ी टेक्सटाइल हैं, सूरत में भी काफ़ी इंडस्ट्री हैं। अब यहाँ से किसी ने क्या किया, एक साड़ी बना दी, बोल दिया कि ये भी चंदेरी के जैसी है, ये भी चंदेरी की साड़ी है, ये भी महेश्वरी। अब हु विल डिसाइड कि कहाँ की सिल्क है, क्या ओरिजिनल है, तो वहाँ पे फिर GI टैग का आता है, जिसके पास टैग होगा वही बेच सकता है। तो GI टैग का जो मैं आपको इंपॉर्टेंस समझाना चाह रहा हूँ कि जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है, क्योंकि हर चीज़ के पीछे अगर आपको इंपॉर्टेंस पता रहेगा, इफ़ यू नो द थिंग्स कि हाँ ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, वाई दिस न्यूज़ इज़ इम्पॉर्टेंट, व्हाट इज़ GI टैग, तो जोग्राफिकल इंडिकेटर, अगर आपको इसका फुल फॉर्म भी हो तो जोग्राफिकल इंडिकेटर, तो हम जोग्राफिकली इनकी लोकेशन के बेस पे कि हाँ जैसे आगरा का पेठा, अभी उसको GI टैग नहीं मिला, लेकिन एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, या कहीं भी हर जगह पे कि बीकानेर की नमकीन,
या कहीं का वो होता है ना खाने का, यार कहाँ का वो फेमस है, बीकानेर की नमकीन बहुत अच्छी है, आगरा का पेठा हो गया, कहीं का कुछ हो गया, है ना। अभी उड़ीसा और बंगाल में लड़ाई चल रही थी वाइट रसगुल्ला को लेके, स्पंज रसगुल्ला हम खाते हैं ना वही, तो कि ये उड़ीसा का है कि वेस्ट बंगाल का है, उसको लेके वो बोले नहीं हमारे यहाँ ओरिजिनल है, हमें जीआई टैग मिलना चाहिए, इस तरह से। तो कई बार ये भी होता है। तो लोकेशन के आधार से, मैंने बोला दार्जिलिंग टी, तो देखिए टी के आम नाम क्या है, उस जगह का नाम ही लगा हुआ है दार्जिलिंग टी। सो दिस वे वी शुड सी। सो इट इज रिकॉग्नाइज्ड WTO। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि इट इज रिकॉग्नाइज्ड, यस इट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द WTO। इट कवर्स एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, नेचुरल प्रोडक्ट्स और मैन्युफैक्चर्ड एंड एश्योर्स द क्वालिटीज और एट्रीब्यूटीज डेट आर यूनिक टू डेट जोग्राफिकल रीजन। वही चीज मैं बता रहा हूँ। तो इसमें यह भी है कि कई बार क्या होता है कि समटाइम स्टूडेंट गेट्स कंफ्यूज्ड कि ये जो जीआई टैग हुई, आपने जितने प्रोडक्ट देखे ये सब बनाए गए हैं, काफ़ी नेचुरल हैं। तो कई बार लोग सोचते हैं यार ये खाली एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए है क्या, चिली हो गया या आपका कोई सिल्क हो गया, उस तरह से, या और भी हैं। तो इसमें देखिए एग्रीकल्चर प्रोडक्ट भी हैं, नेचुरल प्रोडक्ट भी हैं, या मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट भी हैं। ऐसा नहीं है कि सब ऑर्गेनिक ही है। इनऑर्गेनिक बेस है, पॉटरी हमने देखा, हमने बिजली वेयर देखा, तो वो सब भी है। और इसमें क्या है कि इट हैव सम पिक्यूलियर क्वालिटी, इट्स हैव सम फाइन एट्रीब्यूट, जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि उसको अपने क्वालिटी, जो एग्जाम्पल भी दिया वो इसी वजह से दिया है कि आप लोग उस चीज़ को अप्रिशिएट कर पाओ, उस चीज़ को समझ पाओ कि हाँ ये क्यों हम दे क्यों रहे हैं, मतलब कुछ तो वजह होगी, कोई तो क्वालिटी ऐसा होगा ना कि हाँ ये इससे अलग है। सो दिस इज द रीजन। अब ये हाँ ये आप देखिए जो मैं बता रहा था कि, तो ये अगर आप देखते जाइए, पहले क्या था यहाँ पे एपन क्राफ्ट। तो अगर आप देखोगे तो उसी सीक्वेंस में मैंने फोटो अरेंज किए हुए ताकि आपको आसानी रहे। तो एपन क्राफ्ट है, फिर तमटा प्रोडक्ट, तो एक 1 बाय 1 करके देखते आते हैं। तो दिस इज एपन क्राफ्ट, इसको आप देखोगे। सो दिस इज, गिव मी अ मिनट, दिस इज एपन क्राफ्ट, दिस इज एपन, ठीक, दिस इज एपन क्राफ्ट, आप देख सकते हो अगेन। तो अब आपको एक चीज पता चल गया एपन क्राफ्ट का मतलब क्या है। कोई कारपेट टाइप चीज है, कोई एक तरह से कारपेट बोल लीजिए, या कोई क्लॉथ रिलेटेड चीज है, क्लॉथ है, टेक्सटाइल रिलेटेड चीज है, तो यू कैन कंसीडर इट एज अ टेक्सटाइल प्रोडक्ट, यू कैन कंसीडर इट एज अ कारपेट, एनी हैंडलूम वीविंग प्रोडक्ट, इस तरह से। तो उसमें एक नेचुरल डिजाइन है, आप ये वन ऑफ द डिजाइन है, ऐसा नहीं कि सारी डिजाइन ऐसी होती है, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल। सो बेसिकली एपन क्राफ्ट। तो अब आप इस पिक्चर को देख लीजिए, आपको होना चाहिए हाँ आप इसको एक रुमाल से, एक टॉवेल से, या एक कारपेट से, दरी से कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। सो दैट इज जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि हाँ कैसे होता है। नेक्स्ट है तामटा। तो आप देखते हो कई बार आपने देखा होगा जो तामता है, कई जगह तांबा भी बोलते हैं ना हिंदी में। आप अगर इफ यू लुक एट, इफ यू हैव हर्ड इन सम स्टेट्स कि हाँ कहीं बोलता है तांबे का काम हो रहा है, तामटा, है ना, ऐसे। तो तामटा कई जगह वर्ड ही यूज होता है तांबे के बर्तनों के लिए, कॉपर के बर्तनों के लिए। तो अगर आप यहाँ भी देखोगे तो वही चीज़ है। आप देखो अभी भी कई लोग ऐसे हैं आपके, आई होप कई लोगों ने देखा भी होगा कि कई लोग ना तांबे के बर्तन में पानी रख के रात में सुबह पीते हैं तो उससे पेट साफ रहता है। ऐसा एक है कि हाँ तांबे का बर्तन जो होता है वो फायदा करता है। इट इज़ अ केमिकल प्रोसेस भी उसमें इन्वॉल्व है कि इट किल्स द जर्म्स एंड ऑल। पुराने लोग में आप देखिए आज भी कई सिटीज़ ऐसी हैं, कई पुराने शहर ऐसे हैं जहाँ पे लोग आज भी तांबे के बर्तनों में कुछ प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, बोलते हैं कि इसको तांबे में रखने से बहुत ठीक रहता है, खासकर पानी के लिए। तो यूनिकनेस है। तो ये देखिए कुछ हैं फोटो, तो तामटा, कढ़ाई भी रखी हुई है और बाउल्स भी हैं, आपके ग्लास भी हैं, मग्स हैं। सो दिस इज तामटा, दिस इज तामटा, दिस इज तामटा प्रोडक्ट, ठीक है। तो अब आपको तामटा याद आएगा कि कॉपर का है, आपको एक चीज ये दिमाग में रहेगी, आप देख सकते हो कॉपर है, ब्रास टाइप जो फिल आ रही है वो चीज है। देन नेक्स्ट ये देखिए, ये नेक्स्ट जो है बहुत अच्छा है। नेक्स्ट आपका है रिंगल क्राफ्ट। देखिए रिंगल, तो रिंगल में आप रिंग से भी याद रखते हो, आप देखो रिंग टाइप से बने हुए हैं। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो रिंग टाइप बास्केट्स आर देयर एंड दीज आर वुडन बास्केट्स। ये एक अच्छी बात है कि रिंगल क्राफ्ट अगर हमें नहीं पता, हमने अगर उसकी फोटो नहीं देखी तो हम क्या सोच सकते हैं रिंगल क्राफ्ट पता नहीं क्या है, हो सकता है ये कोई टॉय है, हो सकता है रिंगल क्राफ्ट कोई नक्काशी का काम हो, है ना, कोई नक्काशी का हो, कोई मान लो ज्वेलरी का काम हो। बट रिंगल क्राफ्ट अगर हमने फोटो देख लिया तो ये किसका काम, ये क्या है, एक वुडन जो आपकी वो हैं
जो बैम्बूज होते हैं, पतली लकड़ियाँ होती हैं, स्टिक्स वगैरह, उनसे मतलब आपने लकड़ी की बास्केट देखी होगी, मतलब यूज़ होती हैं। अगर आप मंडी गए हो कभी, इफ़ यू गो टू द वेजिटेबल मार्केट, फ्रूट मार्केट, वहाँ पे ये सब रहती हैं। तो ये यहाँ की खासियत है। मीन्स इस तरह की गोल रिंग टाइप में, देखना कितनी अच्छी लग रही है, कितनी ब्यूटीफुल लग रही हैं, कि आप उनकी हाइट वाइज भी देखिए कि कोई छोटी है, इसमें आप कुछ भी अपना सामान रखिए, बड़ी है। तो अगर आप देखो तो इसका इंपॉर्टेंस भी क्या है कि एक तो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो गया, कितना ब्यूटीफुल, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि ये कुछ खराब हो जाएगा, कुछ ऐसा, मतलब एनवायरनमेंट फ्रेंडली, लाइट इन वेट, ड्यूरेबल भी होती है, काफ़ी स्ट्रांग होती है स्ट्रेंथ। तो आप देखो कि इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, हम पॉलीथीन बैग कैरी करते हैं, वी कैरी पॉलीथीन बैग्स फॉर टेकिंग थिंग्स, फॉर हैविंग प्रोडक्ट्स। किसी भी आप दुकान पे जाओ तो आपको पॉलीथीन, अगर आप इस तरह की चीज़ों को कैरी करते हो, फॉर एग्जांपल अगर आप नॉर्मल लेके चलते हो, इसके कुछ बैग्स बन जाए इस तरह से, जूट के होते, तो वी कैन प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट एज वेल, और एट द सेम टाइम वी कैन प्रोटेक्ट लाइवलीहुड ऑफ दीज पीपल्स ऑल्सो। तो ये आपका रिंगल हो गया। तो दिस इज रिंगल, रिंगल क्राफ्ट। नेक्स्ट थुल्मा। तो थुल्मा आपको दिख ही रहा है, रोल करा हुआ एक कारपेट है, रोल करा हुआ एक आपको दिख रहा है टेक्सटाइल है, तो दिस इज थुल्मा। तो आप देख सकते हो काफ़ी ये नेट करके बनाया गया है, काफ़ी वोवन करके बनाया गया है व्यूअर्स द्वारा। सो दिस इज थुल्मा, अगेन इट इज पार्ट ऑफ उत्तराखंड। नेक्स्ट क्या है, दिस इज अगेन कारपेट, यू कैन सी, लेट मी चेक इट नेम। थुल्मा हो गया हमारा, हाँ, भूतिया दान कारपेट, दिस इज भूतिया दान कारपेट, भूतिया जो भी है ऐसा प्रोनाउंसिएशन, लेट्स कॉल इट भूतिया दान कारपेट। देन चायूरा ऑयल एंड मुंशियाई राजमा, तो ये तीन चीज हमारी अभी बचती हैं। सो दिस इज भूतिया दान कारपेट। दिस इज भूतिया दान कारपेट, ठीक है। दिस इज चायूरा ऑयल, तो अब अगर आप शेप देखोगे तो आपको पास से कुछ आपको ऐसा लगता है, मतलब दूर से आपको लगे जैसे ग्रीन कोकोनट है, या अगर छोटे छोटे हैं तो ऑलिव टाइप से, तो उस तरह से। तो आप एक शेप देख सकते हो कि हाँ ये कुछ हमें राउंड शेप्ड होते हैं ये, और इसमें से ऑयल निकलता है। एक्चुअली इसमें क्या है, इसकी मैं आपको खासियत बताऊं कि चायरा ऑयल क्यों फेमस है अदर के कंपैरिजन में, कि इसमें से जो ऑयल निकलता है वो काफ़ी ज़्यादा निकलता है। अगर आप इसको ढंग से क्रश करते हो तो उसका जो अदर हमारे ऑयल सीड्स हैं, जैसे आपको पता है कि वी हैव सो मेनी ऑयल सीड, राइट, जिसमें से हम ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं, कोकोनट से भी ऑयल निकलता है, वी हैव अदर ऑयल सीड्स, राइट, उसमें से हम लेते हैं, सरसों का तेल हो गया जैसे। लेकिन उनके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में क्या है, इसका जो फल है, इसको चैरू बोलते हैं, तो इसका जो बीज होता है उसको हम क्रश करते हैं, व्हेन वी क्रश द सीड्स ऑफ दिस चैरू, सो व्हाट हैपन्स दैट ऑलमोस्ट 70% यू कैन एक्सट्रैक्ट द ऑयल। मीन्स अगर आप उसको पूरी तरह से क्रश कर देते हो, पूरी तरह से निचोड़ते हो, एंड देन इफ यू स्क्वीज इट, इफ यू प्रॉपरली क्रश इट, देन यू कैन एक्सट्रैक्ट 70% ऑफ द ऑयल। मीन्स उसमें से इतना ज़्यादा ऑयल निकल सकता है। जैसे इफ आई टेक एस नॉर्मल एग्जाम्पल समझाने के लिए, कि अगर आप गन्ने को देखते हो, अगर हम गन्ने का जूस निकालते हैं, उसको प्रॉपर तरह से उसको अगर हम मशीन में डालते हैं, तो आप देखते हो उससे काफ़ी हद तक चीज़ें एक्सट्रैक्ट हो जाती हैं। तो सेम वे इसमें भी है। और एक चीज़ है कि जो वहाँ के लोग, जो लोकल लोग रहते हैं, देखिए उनके पास तो सफोला ऑयल, ब्रांड ऑयल, ये सब तो है नहीं, दे आर नॉट हैविंग, एंड सो द पीपल हु आर लिविंग, जैसे पाम ऑयल हो गया, कहीं पे कई लोग पाम ऑयल को यूज़ करते हैं खाने के लिए भी, अदर एक्टिविटीज़ में। तो इसका मल्टीपर्पज़ है, अगर आप इसका यूज़ देखोगे तो इट इज़ मल्टीपर्पज़। ये मेडिसिन में भी यूज़ होता है, ये सोप इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है, सोप्स मैन्युफैक्चरिंग में, ये एज ए डिसइंफेक्टेंट भी यूज़ होता है, डिसइंफेक्टेंट, क्योंकि इसकी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी भी हैं। तो अगर आप देखो तो ये मल्टीपर्पज़ ऑयल हो गया। और कहीं कहीं इसको कई लोग खाने के तौर पे मिक्स, मतलब कुछ एडिबल चीज़ें बनानी है, कुछ ऐसा बेक्ड प्रोडक्ट्स बनाने, उसमें भी यूज़ होता है ये। सो इन दैट सेंस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इट बिलोंग टू उत्तराखंड। इतना हमें याद रखना है कम से कम। अगर इसका आता है कि ये कहाँ पाया जाता है, क्यों इसकी खासियत है, ये कैसे है, तो आप लिख सकते हो, या आपको कल को प्रमोट करना है तो आप लिख सकते हो कि हम पाम ऑयल के अल्टरनेटिव में से, आपको पता है
पाम ऑयल की अपनी एक क्राइसिस चलती है, तो पाम ऑयल का अल्टरनेटिव में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। बाकी ये आपका हो गया राजमा, मुंगियारी राजमा, मुंशियारी राजमा, यस। सो दिस इज मुंशियारी राजमा, दिस इज मुंशियारी, मुंशियारी राजमा, राजमा और या वॉट एवर स्पेलिंग है, और राज MAH वॉट एवर। सो मुंशियारी राजमा एक आपको ये देखना है। तो इट इज़ वाइट इन कलर, वाइट टेस्ट से काफ़ी अच्छा रहता है, इट इज़ वाइट इन कलर। सो ये वाइट है काफ़ी, अगर आपको कहीं ऐसा राजमा देखे देन यू कैन से कि हाँ ये मुंशियारी राजमा है। अगर आप कहीं मार्केट जाओ, अगर इफ़ सम ऑफ यू लव दिस राजमा एज अ फूड, देन यू कैन गो टू देन यू कैन डायरेक्टली से कि हाँ मैंने ये पढ़ा था, मैंने ये देखा था और इसको GI टैग मिला हुआ है एंड दिस इज मुंशियारी राजमा। आप अपने फ्रेंड्स को या फैमिली में किसी को बता सकते हो कि यस दिस इज आई हैव सीन इन माय न्यूज़। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन कर लीजिए। आई एम गिविंग यू 2 मिनट टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। और ये देखिए, और ये क्वेश्चन इसलिए भी है कि सो दैट टू गिव यू एन आइडिया दैट what kind of question has been asked by UPSC in previous papers, previous years. So this is a question being asked by UPSC in I think 2017 or 16. So which of the following have been accorded geographical indication status? तो आपके सामने बनारसी ब्रोकेड एंड साड़ी है, राजस्थानी दाल बाटी चूरमा है और तिरुपति लड्डू है। So I am giving you 2 minutes to attempt this question. Just attempt it. Let me see how many of you have idea about this question. अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व किया UPSC देन इट इज इजियर वन। बताइए जल्दी। ओके मैं साइड से हो जाता हूँ, क्वेश्चन नहीं दिख रहा होगा कुछ लोगों को। Question is asking which have been received, which of the following have been received या has been received। एक भी हो सकता है, तीनों हो सकते हैं या जो भी। So options are there. So I am getting responses. Yes, good, very good. बाकी लोग भी अटेम्प्ट करो। Okay. So its correct answer is C, 1 and 3. Actually this Rajasthani dal bati churma, although it is very tasty, I hope many of you have tasted this dal bati churma, but it has not received GI tag so far. Although government is approaching, but it has not received GI tag. So this is बनारसी साड़ी, अभी हमने पहले देखा ही था, बनारसी साड़ी थी जब हमने चंदेरी की और महेश्वरी की बात करी थी। और तिरुपति लड्डू, कोई तिरुपति लड्डू अगर आपने कुछ लोगों ने देखा हो, अगर बाई चांस आप लोगों में से कई लोग कुछ लोग तिरुपति विजिट किया हो आप लोगों ने, तो उसकी अलग ही खासियत है तिरुपति लड्डू की, आपने प्रसाद में खाया भी होगा तिरुपति की। सो मे बी 1 and 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है क्योंकि इकोनॉमी अगर आप फॉलो कर रहे हो और आप अगर इकोनॉमी देख रहे हो, एंड दिस क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड इन मेंस आल्सो, इट इज बीइंग आस्क्ड इन प्रीलिम्स आल्सो, इनडायरेक्टली, नॉट डायरेक्टली आई एम सेइंग, एंड इट इज इन न्यूज़ और इन एनी कमिंग ईयर आल्सो इट कैन बी आस्क्ड बिकॉज इट इज वन ऑफ द फेमस टॉपिक विच कीप ऑन अपीयरिंग इन द न्यूज़पेपर। अगर आपने न्यूज़पेपर देखा हो तो आप भी देखते होंगे ये जो टर्म है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड IBC 2016 अ गेम चेंजर रिफॉर्म। श्री पीयूष गोयल, पीयूष गोयल आपको पता है मिनिस्टर हैं, राइट? तो अभी वो ये सब इसका उनको मिला हुआ है, तो उनके हिसाब से ये वन ऑफ द गेम चेंजर रिफॉर्म की बात कर रहे हैं और ये है वास्तव में, क्योंकि आप देखो इसका मैं आपको एक बैकग्राउंड बता रहा हूँ, उसके बाद हम इस प्रोविजंस को भी देखेंगे कि पहले क्या होता था कि जब कुछ लोग होते थे, एक मतलब एक देयर आर टू वेज, इस चीज़ को दो तरह से समझते हैं, टू वेज।
that whenever a person starts a business or any venture, he starts with the aim that okay, I will do this, it will work, and in future will deliver. But sometimes what happens, things do not go as we plan, right? So there may be losses, and sometimes we may have to wind up our business as well. But sometimes also it is also been seen that sometimes people became defaulter intentionally by knowing the things, just to skipping the things, and कि now अब हमारे पास पैसा नहीं है, अब हम क्या करें, हम तो खाली हैं, जो करना है कर लो, likewise that way. So if you, एक तो वो चीज़ हो गया, जैसे विजय माल्या वाला केस था कि भाई उसमें पैसे ले लिए, सब कुछ कर दिया, फिर बाद में भगोड़ा भी हो गया, एब्सकॉन्डर हो गया, भाग गया वो चीज़. दूसरा, अगर आप देखोगे कुछ ऐसा होता है कि जहाँ पे जेन्युइन लोग हैं, मीन्स देर आर जेन्युइन पीपल, बट अभी पैसा ब्लॉक हो गया. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, रिलायंस जो अनिल अंबानी हैं, तो उनके रिलायंस की कई कंपनी ऐसी हैं जिन्होंने बिजनेस किया, और अच्छी बात है, उन्होंने बिजनेस किया, कुछ सोच के किया, लेकिन बीच में ऐसा हुआ कि बिजनेस पिक नहीं कर पाया जो सोच के उन्होंने पैसा लगाया था, बिडिंग की थी. और ऐसा, और उसमें होता क्या है कि पैसा किसी एक इंसान का नहीं होता. जैसे अभी क्या होता है कि जैसे मान लो आप कोई रिस्क ले रहे हो छोटा मोटा, तो उसमें क्या होता है कि वो हो सकता है आप अपने घर से पैसा लगा रहे हो, आपका अपना कमाया हो, या आपके फादर या फ्रेंड सपोर्ट करो, तो आप उसमें ज़्यादा लोग इन्वॉल्व नहीं हैं. बट जब एक बड़े लेवल पे बिजनेस होता है, व्हेन दिस एक्टिविटीज आर बीइंग डन ऑन द लार्जर लेवल, राइट, एट हायर लेवल, तो उसमें मैनी पीपल्स आर इन्वॉल्व इन दैट, एज अ शेयर होल्डर्स, एज अ पार्टनर, एज अ इन्वेस्टर, और उनका पैसा भी लगा होता है. तो अगर आप उस सेंस में इसको देखोगे तो, और पैसा कहीं ना कहीं फाइनेंशियल कंपनी से आता है, या बैंक्स हैं आपकी, बैंक्स होती हैं, और बैंक्स अल्टीमेटली किसका पैसा लगा रही हैं, पब्लिक का लगा रही हैं, क्योंकि हमारी जो आपकी और मेरी सेविंग्स हैं उसी को बैंक दे रहे हैं. तो अगर कल को कोई कंपनी का पैसा ब्लॉक होता है, ना तो उससे रोजगार डेवलप हो रहा है, ना ही वो कंपनी काम ही कर पा रही है, और वो कंपनी के जो मालिक है वो भी अब परेशान हो गया कि अब मैं क्या करूं. तो यही चीज़ हुई थी अनिल अंबानी के साथ भी, कि उनके कोई कंपनी थी, पावर प्रोजेक्ट थे, और भी कई सारी कंपनी थी जो लॉसेस में चल रही थी. तो मान लीजिए अब आपने कोई कंपनी खोल दी, सपोज, या आपने एक फैक्ट्री लगा दी, यहाँ पे इस तरह से आपने एक फैक्ट्री लगा दी. अब ये इसमें आपने SBI ने इसमें पैसा लगा दिया, ठीक है, आपने SBI से सपोज ले लिया 1000 करोड़ का लोन, आपने PNB से भी ले लिया, क्योंकि बैंक्स भी कई सारे इन्वॉल्व रहते हैं कि भाई बड़ा प्रोजेक्ट चलेगा तो आज हम लोन देंगे. उनका अपना इंटरेस्ट होता है. अगर बैंक का आपको पता हो कि बैंक लोन क्यों देते हैं, उनको पता है हम बाद में 13% पे लेंगे, इतना परसेंट, क्योंकि उनकी इनकम इसी से होती है, उनका मेन जरिए है. और इंसानों का फायदा होता है कि भाई पैसा हमको मिल गया, मकान बनाना था, गाड़ी लेनी थी, कुछ भी करना था, उस तरह से. लेकिन यहाँ पे हम जो इंसॉल्वेंसी की बात कर रहे हैं बिजनेस सेंस में कर रहे हैं, कॉमर्शियल पर्पज से. यहाँ पे हम होम, पर्सनल लोन, पर्सनल कार की बात नहीं हो रही, कॉमर्शियल चीज़ों की बातें हो रही हैं. तो अब ये फैक्ट्री लगाई, अब जब ये फैक्ट्री क्या हुआ, नहीं चल पा रही है, तो क्या हो गया, जो लैंड जो था, लैंड में पैसा ब्लॉक हो गया, आपका मशीनरी में पैसा ब्लॉक हो गया. तो कुल मिला के क्या है कि जो 2-4 हज़ार करोड़ रुपए जो इसमें लगा दिए गए थे वो ब्लॉक हो गए अभी आपके, ठीक है. वो अभी क्या होगा कि पैसा यूज नहीं हो पा रहा है. अब उस केस में क्या हो रहा है कि इकोनॉमी को भी फायदा नहीं हो रहा, क्योंकि हम किस एंगल से देख रहे हैं, इकोनॉमिक एंगल से. क्योंकि अगर आप इकोनॉमी में पैसा लगाओगे, पैसा सर्कुलेट होता है. आपने फैक्ट्री लगाई, इकोनॉमिकली कैसे काम करता है मैं आप आइडिया दे रहा हूँ, क्योंकि इकोनॉमी में क्या है, जब तक आप चीज़ों को कनेक्ट नहीं करोगे, समझोगे नहीं, तो UPSC के क्वेश्चन नहीं होते हैं. तो जो चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ वो यही है कि आपने फैक्ट्री लगाई, आप यू हैव बिकम एंटरप्रेन्योर लोग जो होते हैं यही करते हैं. यू आर अ कैपिटलिस्ट, आपने कैपिटल इन्वेस्ट किया, आपने फैक्ट्री लगाई, मजदूरों को काम दिया, मशीनें लगाई, ठीक, मजदूरों को रोजगार मिला, सैलरी मिली, वो अपने बच्चों का पालन करेंगे, दे अर्निंग लाइवलीहुड, अपने घर को, परिवार को चलाएंगे. मशीन्स बनी, तो मशीन जो कंपनियां बना रही हैं उनको फायदा हुआ. तो अब देखो, तो एक जो फैक्ट्री है उसमें कई सारी चीज़ कनेक्ट हैं, इधर वर्कर्स कनेक्ट हैं, ठीक है, मशीन्स वाली जो कंपनीज हैं वो कनेक्ट हैं. तो आप देखोगे तो कई चीज़, द बैंक्स भी कनेक्टेड है. तो एक जो इंडस्ट्री होती है, एक जो फैक्ट्री होती है, जो एक मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, वो कई सारी चीज़ों को साथ लेके चलती है. और अगर वो एक डूबती है या एक अगर काम नहीं कर पाती है, तो कई सारी लोगों की दिक्कतें भी आती हैं कि ये वर्कर जो हैं ये बेरोजगार हो जाएंगे,
इनकी मशीन बिकना बंद हो जाएंगी, इनका लोन फंस जाएगा। आप देखो अभी जो आप कई लोगों ने आप लोगों ने पढ़ा होगा नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, सुना ही नहीं सुना ये टर्म? आई होप कि आप लोगों ने नॉन परफॉर्मिंग एसेट टर्म सुना होगा। वो यही ऐसे ही आता है वो कि जो आपके एसेट्स थे, एक्चुअली लोन जो देती है बैंक वो एसेट्स होता है उनके लिए कि हाँ भाई एसेट्स वो चीज़ जो फ्यूचर में हमारे लिए काम आए, जो हमारे लिए प्रोडक्टिव रहे, वो एसेट्स हो गया। तो लोन इनके लिए इन्होंने लोन दिया ये सोच के कि चलो फ्यूचर में हमें 13% मिलेगा, तो इन्होंने 1000 दिया ये सोच के कि कल को 1000 1300 करोड़ 1400 करोड़ हो जाएंगे, लेकिन उल्टा हो गया, वो 1000 जीरो हो गए कि इसके पास पैसा ही नहीं है, ये कंपनी डूब चुकी है अभी। तो ऐसे केस को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने सोचा यार ये इससे बहुत दिक्कत हो रही है, इकोनॉमी को लॉस हो रहा है, बैंक्स को लॉस हो रहा है, ऐसे कुछ करना पड़ेगा। तो उसके लिए उन्होंने इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड निकाला। अब यहाँ पे देखिए दो वर्ड आते हैं, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी। तो वो पहले हम समझ लेते हैं वो क्या है। तो अगर आप देखोगे भाई, हाँ इसका कंटेक्स्ट बता दूं, अभी मैंने आपको बताया कि इंसॉल्वेंसी बैंक कहानी क्या होती है, इसका बैकग्राउंड क्या है, क्यों आया। आई होप कि आप लोगों को सिंपल भाषा में, इन सिंपल एंड ईजी लैंग्वेज, दीज थिंग्स बिकम्स क्लियर टू यू, राइट। सो if you look at the context, India's rank in resolving insolvency indicator in World Bank's ease of doing business report sees a meteoric rise of 84 place. Sometime meteoric rise means एक phrase use किया गया है, meteoric means बम्पर है ना, मतलब कि बम्पर खेती हुई, बम्पर प्रोडक्शन हुआ, ऐसी तरह से बहुत अद्भुत छलांग मारी। कहा कि 84 प्लेस की, आपको ये सब याद नहीं रखना है कि 84 प्लेस की मारी क्या मारी। Our recovery rate has also dramatically improved from 26 cent on dollar to 71.6। तो रिकवरी रेट देखिए, पहले हम 100 अगर की हम बात करें, 100 सेंट ऑफ डॉलर की बात करें तो हम खाली इतना रिकवर कर पाते थे, 26%। मीन्स अगर हमने किसी को 100 रुपये उधार दी तो हम उससे 26 रुपये ही वापस ले पाते थे। कि यार वसूली होती ना, वसूली आप समझते हो, या वसूली ने आपने सुना होगा कि यार वसूली कर रहे हैं या बैंक्स अपनी रिकवरी कर रहे हैं, कई बार कुड़की होती है, रिकवरी होती है, खाली 26% आता था, अभी देखिए 71। तो इसमें भी काफ़ी फायदा हुआ। तो ये किसकी वजह से हो रहा है, ऐसा मिनिस्टर जो हमारे कह रहे हैं, वो कह रहे हैं इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड की वजह से। इससे पहले ये था नहीं, तो पैसा ब्लॉक का ब्लॉक पड़ा था, समझ नहीं पा रहे थे कि चलो वो देगा तब देगा। ऐसा होता ना कि अब आपका कोई दोस्त मान लीजिए पैसे लेके आपसे भाग गया या नहीं दे रहा, या उसके घर में कोई दिक्कत हो गई, अब आप सोचते हो ना ब्याज जान थोड़ी ले लेंगे इसकी, अब ले लिया तो ले लिया, तो आप किस भरोसे पे रहते हो, चलो फ्यूचर में कभी देगा। या आपका कोई रिश्तेदार है, इफ यू हैव एनी ऑफ योर रिलेटिव हैज टेकन मनी फ्रॉम योर फादर और फ्रॉम यू, देन व्हाट यू फील, ठीक है लेट्स सी मे बी इन फ्यूचर ही विल गिव। अच्छा आदमी तो अच्छा है और इतना लगता भी नहीं कि पैसा मेरा मारेगा, बट ठीक है लेट्स सी। सेम वे पहले ये फिलॉसफी चल रही थी कॉर्पोरेट के साथ भी कि नहीं अच्छे हैं, अब क्या करें, वक्त ही ख़राब आ गया, रिसेशन आ गया, कोरोना आ गया, इस तरह से। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया कि ऐसे काम नहीं चलेगा। तो यू नो दैट आफ्टर 2014 दिस बीजेपी गवर्नमेंट गॉट स्ट्रॉन्ग मैंडेट, सो दे केम आउट विद दिस रिफॉर्म कि नहीं कुछ करना पड़ेगा। तो ये फायदे हुए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। आई होप आप सबको पता होगा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो रैंकिंग है वर्ल्ड बैंक की तरफ से जारी होती है, उसमें काफ़ी अच्छा हमने काम किया। सो दिस इज अबाउट इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। अब हम इस पे आ रहे हैं कि पहले हम इंसॉल्वेंसी क्या होती है, क्योंकि ये वर्ड व्हेन दिस वर्ड इज मेंशन्ड देयर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी, लेट्स सी that what this insolvency is. So insolvency is a situation where individuals or companies are unable to repay their outstanding debt. ऑलरेडी मैंने इसका आपको बैकग्राउंड दे ही दिया। ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे इंडिविजुअल या कंपनी अपने ऊपर जो कर्जा है, जो मैंने आपको अभी SBI PNB का एग्जांपल दिया, अनिल अंबानी का एग्जांपल दिया, इसी वजह से दिया कि आप लोग उसको लिंक कर पाओ। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। तो वही चीज को बोलते हैं इंसॉल्वेंसी। बैंक्रप्सी, ये भी मैं आपको समझाऊं। Bankruptcy, on the other hand, is a situation whereby a court of competent jurisdiction has declared a person or other entity insolvent, having passed appropriate orders to resolve it and protect the rights of the creditors. It is a legal declaration of one's inability to pay off debt. अब मैं इसको सिंपल भाषा में समझाता हूँ कि बैंक्रप्सी और इंसॉल्वेंसी दोनों की मीनिंग सेम है। मतलब दोनों का मतलब वही है कि पैसा आपका नहीं पे पा रहा, सामने वाला पैसा आपका नहीं दे पा रहा। एक ऐसी सिचुएशन आ चुकी है, द काइंड ऑफ सिचुएशन हैज अराइजन और हैज अराइव्ड
that a person is not able to pay. And when I'm saying person, it doesn't mean person only, it can be a company also, or it can be a group of person also. Means 2-3 people have started any venture and they became defaulter over a period of time. So in insolvency and this bankruptcy, if you see, so basic difference is angle of legality. If someone is saying in your society कि वो तो दिवालिया हो गया, तो दिस इज इनफॉर्मल, उसको भी किसी ने ठप्पा नहीं मारा. हम बोलते ना कि कई बार कि जब तक कानून ना मान ले तब तक आप किसी को गुनहगार नहीं समझ सकते, चाहे वो गुनहगार हो. ऐसा हम लोग बोलते हैं कि हाँ, या जब तक कानून की नज़रों में वो गुनहगार ना हो या कन्विक्ट ना हो. If someone is not convicted by the due process of law or by the court of law, we cannot consider that person as a criminal or as a person who has committed some offense. So in the same way, even though we know that this person is unable to pay the debt, so that is a situation when we call that he became insolvent. That is the meaning of insolvent. But if it is recognized by the court legally through legal process that okay, on what basis you are saying that he is a insolvent. So when court through proper hearing, through proper process and through proper assessment come to this conclusion that okay, this person is unable to pay now, and to protect the rights of the creditor, see the one word, having passed appropriate orders, and to resolve it, protect the rights of creditor. And who are the creditors here? In this example, I have told you that creditors are SBI and PNB. So there can be any other creditor, not just these two. There can be private banks, there can be any financial company also, any insurance company also. There can be any institute, financial institute, banks, any bank, HDFC also, foreign bank, Indian bank, it doesn't matter. What I'm trying to convey is your right of creditors, those who given you the loans. It is a legal declaration of one's inability to pay off debt. So it is legal declaration. It is legal declaration. So this kind of clarity all of you should have while reading anything, right? This kind of clarity UPSC demands from us. I hope you are getting my point, that this is what the meaning of the two words, insolvency and bankruptcy. So just write in the comment box whether you have understood this basic understanding, because I have seen many people, despite reading this insolvency and bankruptcy, they are unable to know that what is insolvency and what is bankruptcy. अगर आप अपने किसी फ्रेंड से भी पूछोगे ना कि चलो मुझे बताओ इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी में डिफरेंस क्या है, नहीं बता पाएंगे बहुत सारे लोग. सो आई होप जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई. उसके बाद हम आगे की चीज़ देखते हैं कि ये कैसे वर्क करता है. जल्दी मुझे इस चीज़ पे वर्क बताइए तब मैं, ताकि मैं आगे बढ़ूँ. ओके, आई कैन सी सम कमेंट्स. गुड गुड. बस तो आपको बस ऐसे ही समझना है कि है क्या चीज़, क्यों हमें चाहिए था ये कोड आने से हुआ क्या. इसे आप देखिए तो रैंकिंग इंप्रूव हुई. हाउ दिस इंसॉल्वेंसी इज डिफरेंट फ्रॉम बैंक्रप्सी, राइट. द कोड creates various institutions to facilitate the resolution of insolvency. These are as follows. So अब now हम देखते हैं कोड काम कैसे करता है. Now we are entering into the things that how this code works. Right now we understand the terms. Insolvency professionals. तो देखिए हमने कहा कि क्या क्या institutions provide करता है, क्या mechanism क्या है, तरीका क्या है. What is the mechanism to organize this process? What is the mechanism to ensure that insolvency is being protected in future, or it is resolved now, the issue is resolved. So first is insolvency professionals provide karta. देखिए as a common man it is not feasible for us to see these things, because for everything there is some profession required. For example, if you fall ill, if you have any issue with your health, you go to doctor, because doctor is a professional who can do this diagnosis. Similarly, if you have any engineering task, if you want to construct a bridge, you will not go to a farmer, you will not go to a
doctor, you will approach to a engineer, civil engineer, that okay, I want to have a bridge. Similarly, any car mechanic, you can take any. Similarly, in this case also, we need some professional, insolvency professional, those who see that okay, that how this company became defaulter, how a person became defaulter, and whether this actually needs this insolvency process or not, whether we need to apply this IBC code 2016 or not. So this is one thing. So let's see who are insolvency professional. A specialized cadre of licensed professionals. So mark my words. So when you are reading the definition, in your notebook also, you should keep writing these things, because these things are important one where we have to focus. Tomorrow UPSC can ask such kind of thing and we may get confused in prelims also and mains also. So they are licensed professional, specialized. I have explained you that how they are specialized when I have given you the example of doctor, engineers. Similarly, they are also specialized, who are quite competent to do this task of handling these cases. But they are licensed professional, anyone cannot do. Is proposed to be created. These professionals will administer the resolution process, manage the assets of debtor, and provide information for creditors to assist them in decision making. So क्या होता है इसमें, मैं आपको बताऊं कि we have appointed some insolvency professional. Now they will come, वो लोग आएंगे आपकी फैक्ट्री में आएंगे, हमने पिछले एग्जाम्पल में फैक्ट्री में देखा. अब जो जिसने कर्जा लिया, और देखिए एक चीज और है इसमें, एक चीज बहुत अच्छी है वो मैं आपको बताऊं यहाँ पे, जो अभी मुझे इस टॉप लाइन को पढ़ते हुए लगा कि मुझे बताना चाहिए कि ये इंसॉल्वेंसी में दो केस हैं. जैसे पिछली बार हम स्लाइड में जाएं कि मान लीजिए एक पर्सन है, ये मैंने यहाँ पे किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन मान लीजिए यहाँ पे कोई पर्सन का है जो जिसने कर्जा लिया हुआ है, ये इंसॉल्वेंट हो गया है, बैंकरप्ट हो गया. तो आईबीसी की प्रोसेस को अप्लाई के लिए दो तरीके हो सकते हैं. मीन्स देयर आर टू वेज इन विच दिस आईबीसी प्रोसेस कैन बी अप्रोच्ड और कैन बी यूज्ड. या तो ये जो इन्होंने पैसा दिया है, ये लोग कोर्ट के पास जाएं. ये लोग कौन, क्रेडिटर्स, ये फाइनेंशियल कंपनीज भी हो सकती हैं, एफसीज, ठीक. ये कोर्ट के पास जाएं कि जज साहब, माननीय कोर्ट, हमारा पैसा फंस गया है, कृपया करके हमारा पैसा निकलवाइए. तो फिर कोर्ट डिसाइड करेगा कि ठीक है हम देते हैं. या फिर ये इंसान खुद ही बोले कि मैं तंग आ गया हूँ, मुझे रोज रोज फ़ोन आते हैं, मुझे रोज लोग फ़ोन करके परेशान करते हैं कि हमारा पैसा दे दो, हमारा पैसा दे दो, मुझे धमकियाँ आती हैं, तो मेरे लिए कोई रास्ता निकालो. नाउ आई एम फेड अप, मुझे कोई जरिया बताइए कि मैं इससे बाहर आना चाहता हूँ. जो भी है आप देख लीजिए, इसको बेचना है बेच दीजिए, फैक्ट्री को जो करना है कर दीजिए, मुझे छुटकारा दिलाइए. तो ये जा सकता है. तो दोनों ही केस में ये जो आईबीसी की जो प्रोसेस है लागू हो सकती है. तो इसमें जो डेटर है, इसके एसेट्स को मैनेज करते हैं ये लोग. ये बोलेंगे, जो प्रोफेशनल्स होते हैं ये जाएंगे और आपसे बोलेंगे कि अच्छा ठीक है, आप कंपनी नहीं चला पा रहे हो, कोई बात नहीं, आप हमें अपनी सारी चीज़ें बताओ बैठ के, कितने एसेट्स हैं आपके, इस कंपनी के नाम पे क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं. मतलब होता है ना, हर कंपनी के नाम पे लैंड होता है, कार होती हैं, बहुत सारे एसेट्स होते हैं, आप हमें बताइए और अब आप छोड़ दीजिए, अब हम इसको मैनेज करेंगे. क्योंकि पहली प्रोसेस क्या होती है कि एक मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ समझने के लिए, प्रोसेस बहुत कॉम्प्लेक्स भी है, हमें उसमें नहीं जाना है एज पार्ट ऑफ दिस एग्जाम, बट एक अंडरस्टैंडिंग के लिए कि वो लोग इस चीज़ को कंसिडर करते हैं. उसके बाद क्या होता है कि जब व्हेन दे टेक ओवर दीज एसेट्स, व्हेन दे स्टार्ट मैनेजिंग दीज एसेट्स, so what happens that after doing this management they try to run this company. वो सोचते हैं कि चलो हो सकता है कि इंसान को समझ में ना आया हो कंपनी कैसे चलानी है, हम चलवाते हैं. ऐसे कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं जो लॉस मेकिंग कंपनी को भी प्रॉफिट में ला देते हैं, है ना. तो ये भी कोशिश करते हैं कि हम चलो हम एसेट मैनेज करते हैं और हम चला के देखते हैं, अगर उससे पैसा रिकवर हो गया तो अच्छी बात है, ठीक. नहीं तो फिर वो जो क्रेडिटर्स हैं उनको इन्फॉर्मेशन बताते हैं कि देखो ये ऐसी सिचुएशन है, अब आप बताओ क्या करना है, बेच देनी है, फैक्ट्री बेचनी है, जमीन बेचना है, क्या करना है. तो फिर वो इन्फॉर्म डिसीजन ले सकें. तो ये दो तरीके हैं. सो दैट एंड टू असिस्ट देम इन डिसीजन मेकिंग. जो क्रेडिटर्स, जिनने पैसा दिया और जिसने पैसा लिया, दोनों की वो हेल्प करते हैं. तो इट इज लाइक अ ब्रिज. देन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी. तो यहां तो हम लोगों की बात करते हैं, अब एजेंसी भी हैं, है ना.
द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स विल बी रजिस्टर्ड विद इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी। तो ये जो प्रोफेशनल हैं, जो ऊपर जो हमने पढ़ा, ये जो प्रोफेशनल है, दीज आर रजिस्टर्ड, ये रजिस्टर्ड भी होते हैं, दीज आर रजिस्टर्ड विद प्रोफेशनल एजेंसी। जैसे आपने देखा होगा जो आपके पॉलिसी एजेंट होते हैं, एलआईसी एजेंट होते हैं, वो किससे रजिस्टर्ड है? एलआईसी के साथ रजिस्टर्ड है कि भाई कौन दे रहा है सर्विस? एलआईसी दे रही है, लेकिन किसके थ्रू दे रही है? इन प्रोफेशनल थ्रू दे रही है। सेम वे तो प्रोफेशनल्स होंगे तो कहीं ना कहीं उनकी एजेंसी होगी जो उनको मॉनिटर करेगी, या कुछ उनको बताएगी क्या करना है, कैसे करना है, उनका टीम वर्क होगा, तो दिस वो इसके रजिस्टर्ड होंगे। तो रजिस्टर्ड वर्क प्रोफेशनल्स लाइसेंस होंगे, दूसरा ये रजिस्टर्ड होंगे कंपनी के साथ। द एजेंसीज कंडक्ट एग्जामिनेशन टू सर्टिफाई द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स एंड एनफोर्स अ कोड ऑफ कंडक्ट फॉर द, जो मैंने कहा कि कोई उनको होगा कंट्रोल करने वाला, इसलिए में एजेंसी चाहिए। ऐसा नहीं कि प्रोफेशनल्स घूम रहे हैं मार्केट में, हाँ जिसका मन में आया। जैसे आप देखते हो अगर कोई डॉक्टर है, उसको अगर प्रैक्टिस करना है तो उसको भी लाइसेंस लगता है, क्योंकि आप कोई भी प्रोफेशनल काम करोगे आपको लाइसेंस लगेगा, आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, आपको लाइसेंस चाहिए। चाहे आप, अरे आप नॉर्मल एग्जांपल ले लीजिए, अगर आपको कार चलानी तो लाइसेंस चाहिए। सेम वे तो डॉक्टर को मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया लाइसेंस देता है ना, एग्जाम कंडक्ट कराते ही हमारे यहाँ। तो सेम वे ये प्रोफेशनल्स इस एक्टिविटी के लिए कैपेबल हैं कि नहीं, इसका भी एग्जामिनेशन होगा, डिसाइड करेंगे। तो एजेंसी का काम क्या है? इनको रजिस्टर करना, कंडक्ट एग्जामिनेशन टू सर्टिफाई द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स कि हाँ आप बनने लायक हो, एंड एनफोर्स अ कोड ऑफ कंडक्ट फॉर देयर परफॉर्मेंस। और कोड ऑफ कंडक्ट भी बनाना है कि आपको ये नहीं करना है, ये सब नहीं करना है। पता पड़ा आपने खुद ही डील कर ली डेप्टर के साथ या बैंक के साथ कि ठीक है मुझे 10% दे देना, मैं ऐसा कर दूंगा, ऐसा नहीं। प्रोफेशनल्स information utilities, creditors will report financial information of the debt owed to them by the debtor. Such information will include records of debt, liabilities and default. Information utilities भी होनी चाहिए कि अब जो creditors की जो रिपोर्ट है, ठीक है, कि कितनी डेट ले रखी है, तो उसका कोई रिकॉर्ड होना चाहिए कि कहाँ है। तो इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज बना रखी हैं जहाँ पे ये इंफॉर्मेशन स्टोर की जाएगी। मीन्स कोई एक, अब देखिए बार आप बैंक को तो फोन करोगे नहीं कि हाँ एसबीआई के मैनेजर को फोन कर रहे हो, आपकी बताइए कितना है, वो भी बोलेगा यार मैं अपना काम करूँ कि बार आपके फोन पिक करूँ। या क्योंकि मैंने ऐसे कहा कि एक प्रोजेक्ट में, बड़े प्रोजेक्ट में कई सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, आप किस किस को करोगे? तो इससे अच्छा है कि आपने एक जगह डेटाबेस बना लिया, आपके पास एक इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज हैं, यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन है उस चीज़ से रिलेटेड। तो आपको क्या करना है? खाली उस चीज़ को एक्सेस करना है कि अच्छा बताओ किस किस का कितना लोन है, अच्छा इसका इतना है, इसका इतना है, इसका इतना है, ओके कितने दिन पहले दिया था, किस कंडीशन में दिया था, तो वो सब चीजें। तो इसलिए इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज होनी चाहिए। एजुकेटिंग अथॉरिटीज, तो ये तो देखो हो गया कि करेगा कौन काम और कैसे करेगा, मतलब इंफॉर्मेशन कहाँ से आएगी। अब मेन चीज हमने कहा कि क्या बैंक्रप्सी में इट इज अ कोर्ट विच विल डिसाइड कि यहाँ प्रोसेस क्या होगी, किसको फॉलो करना है। तो यहाँ पे एजुकेटिंग अथॉरिटी होनी चाहिए। भाई अब डिसाइड कौन करेगा? देखिए नॉर्मल कोर्ट जो है आपकी, हमने यहाँ पे अथॉरिटी क्यों बना रहा है कोर्ट? क्यों नहीं बोला कि सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, हाई कोर्ट चले जाओ? मुझे इस चीज का आंसर दो आप लोग। एक मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि हमारे पास ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, तो ये क्यों बोल रहा है कि हमें अथॉरिटी और बनानी है, एक नया इंस्टीट्यूशन क्यों बनाना है? मुझे इस चीज का आंसर दो आप। लेट मी सी कि हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू आंसर दिस, बताइए। बताइए कि जब हमारे पास ऑलरेडी हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, तो हम ये फिर नई अथॉरिटी क्यों बना रहे हैं? हम उनसे ही काम चला सकते हैं। और देखिए कोई भी चीज रटनी नहीं है, इसलिए मैं इतना आराम से पढ़ा रहा हूँ। इसलिए दैट्स व्हाई आई एम स्पीकिंग इन हिंदी ऑल्सो, दैट्स व्हाई आई एम ट्राइंग माई बेस्ट दैट all of you can understand the things, right? I'm not strictly speaking in English only, right? So that all of you can participate. तो मुझे आंसर बताइए कि जब तक आप लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, दिमाग पे जोर नहीं देंगे, सोचेंगे नहीं, तो यूपीएससी का एग्जाम ऐसा है जो खाली रटने से नहीं होगा, सोचने से भी होगा कि ऐसा क्यों क्यों हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। तो इस क्यों पे हमें वर्क करना है।
चलिए आपके कमेंट्स दे। ओके ओके, कुछ लोगों के कमेंट्स हैं, ठीक है। हम्म गुड। तो देखिए, जो बेसिकली आपको पता है कि जो हमारी नॉर्मल कोर्ट्स हैं, जो हम बोलते हैं रेगुलर कोर्ट, हम जो ये आपके ना सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, इनको क्या बोलते हैं, रेगुलर कोर्ट बोलते हैं हम लोग। तो रेगुलर कोर्ट क्यों नहीं कर पा रही है, क्योंकि ऑलरेडी इतने सारे केसेस हैं उनके पास। ऊपर से क्या होता है, जो हमारे नॉर्मल जजेस हैं, दे आर प्रोफेशनल इन क्रिमिनल केसेस, सिविल केसेस, बट ये जो आपके इकोनॉमिक ऑफेंस होते हैं, लेट मी राइट दिस वर्ड, इकोनॉमिक ऑफेंस, इकोनॉमिक ऑफेंस, ये जो आपके इकोनॉमिक ऑफेंस जो होते हैं, दीज आर वेरी कॉम्प्लेक्स, दीज आर वेरी कॉम्प्लेक्स बिकॉज इनमें बहुत सारी इवॉल्विंग चैलेंजेस होते हैं, इश्यूज होते हैं। क्योंकि क्रिमिनल्स, क्राइम का क्या है, मर्डर हुआ, आपका रॉबरी हुआ, थेफ्ट हुआ, और कुछ भी, दे आर क्वाइट एज ओल्ड। मर्डर पहले भी होता था, रेप पहले भी होते थे, डेकॉइटी, रॉबरी, अदर टाइप। तो जो क्रिमिनल केसेस हैं, मोस्ट ऑफ देम आर रिपीटेटिव इन नेचर, पहले भी होते थे। लेकिन जो कमर्शियल चीज़ें हैं, इकोनॉमिक ऑफेंस है, वो अलग अलग तरीके से, आप देखो आज डिजिटल में किसी का कोई पैसा चोरी होता है डिजिटल तरीके से, तो क्या वो लॉ के अंदर है या नहीं है, क्योंकि नई नई चीज़ें आ रही हैं। किसी ने फेसबुक पे किसी को गाली दी, तो क्या फेसबुक पे गाली देना क्राइम में आता है कि नहीं आता है, किस तरह का क्राइम है, सिविल है क्या क्रिमिनल है। किसी के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोलना सोशल मीडिया में, तो ये है कि नहीं। तो आप देखो इस तरह से कि वो फ्रीडम ऑफ स्पीच का वायलेशन है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कोर्ट के अभी बियॉन्ड है, मतलब कोर्ट करने को उनको कर सकता है, लेकिन अभी नॉर्मल केसेस कम है। तो इकोनॉमिक ऑफेंस भी उसी तरीके से, दिस इकोनॉमिक ऑफेंसेस आर ऑफ सच नेचर विच रिक्वायर्स अ प्रोफेशनल एक्सपर्टीज, जहाँ पे आपको कॉम्प्लेक्स लगेगा। या अभी दो आईटी कंपनी आपस में लड़ने लगे हैं फॉर एग्जांपल, कि हाँ टीसीएस विप्रो में लड़ाई हो रही है किसी सॉफ्टवेयर को लेके, कि नहीं नहीं ये सॉफ्टवेयर हमने ऐसा किया। अब आप किसी नॉर्मल जज के पास जाएंगे तो उनको नहीं पता सॉफ्टवेयर के बारे में, कि यार ये सॉफ्टवेयर का अगर किसी ने इसे वर्क किया है तो उसको अधिकार मिलना चाहिए, या जिसने उसको अपग्रेड किया उसको मिलना चाहिए, इसमें कितना हार्ड वर्क लगता है, क्या उनको भी उस चीज़ का मान लीजिए आइडिया नहीं है। और भी चीज़ें डिटेल में, मतलब हमें इसमें नहीं आना, मतलब एक एग्जाम्पल ये समझना है। तो इसीलिए हमें स्पेशल कोर्स चाहिए जिसमें इसी तरह के एक्सपर्ट्स बैठे हो। एक लॉ का जज भी होगा, ऐसा नहीं कि जुडिशरी का आदमी नहीं होगा, जुडिशरी पर्सन विल बी देयर, ताकि ये देखने की ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो हो रही है कि नहीं हो रही। लेकिन उसके उनके साथ साथ अदर एक्सपर्ट होंगे। अभी नॉर्मल कोर्ट में क्या होता है, सब सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं आप, सो इफ इन सुप्रीम कोर्ट देयर आर 5 जजेस, तो वो 5 के 5 जजेस ही होंगे। बट यहाँ पे क्या होता है, जैसे यहाँ पे अभी मैं डीआरटी और इन पे आ रहा हूँ, एनसीएलटी पे, तो इनमें अगर एक जज साहब बैठे हैं तो 2 होंगे बैंक के एक्सपर्ट भी। हो सकता है कोई ऐसा इंसान हो जिसको 30 साल बैंकिंग में एक्सपीरियंस हो, कोई ऐसा इंसान हो जो एलआईसी में काम करता था 20 साल, या और किसी इंस्टीट्यूशन में, मान लीजिए आपका आईआरडी है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी है ना, किसी भी इस तरह के जो मतलब फाइनेंशियल एक्टिविटी से लिंक्ड है, या सेबी में काम करते थे, आरबीआई में काम करते थे, इस तरह के। तो आपका ये हो गया नेशनल कंपनीज लॉ ट्रिब्यूनल। एक तो ये अथॉरिटी बनाता है ये एनसीएलटी फॉर कंपनीज एंड डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल फॉर इंडिविजुअल। जैसे हमने क्या कहा कि इंसॉल्वेंट कौन हो सकता है, या तो एक इंसान भी हो सकता है, एक कंपनी भी हो सकती है। अगर कंपनी पे नहीं कर पा रही है, कंपनी अगर डिफॉल्ट हो गई या बैंकरप्ट हो गई, तो उसमें काम करेगा एनसीएलटी, नेशनल कंपनीज लॉ ट्रिब्यूनल। और ये सब चीजें पूछी जा चुकी हैं एग्जाम में, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कंपनीज एंड डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल फॉर इंडिविजुअल्स। तो कई बार ये भी होता है कि अगर आपने ध्यान से नहीं पढ़ा और क्वेश्चन में ऐसा आ गया कि डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल इज एस्टेब्लिश्ड बाय आईबीसी 2016 फॉर कंपनीज। डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल तो है ये भी, है ना, वो नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल है, ये डेट है। और आपने अगर ध्यान से नहीं पढ़ा कि कौन सा इंडिविजुअल के लिए है, कौन सा कंपनी के लिए, तो आप क्या करोगे, गलत मार्क कर दोगे। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, एक इंडिविजुअल के लिए है और एक आपका कंपनी के लिए, एनसीएलटी फॉर कंपनी एंड डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल फॉर इंडिविजुअल्स। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड, तो एक ये इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड भी एस्टेब्लिश करने के लिए प्रोवाइड करता है। क्या है ये बोर्ड, द बोर्ड विल रेगुलेट इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे ये अंतर ही पूछा जा सकता है आपसे, क्योंकि
जो प्रोफेशनल्स हैं तो उनके लिए इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी भी है। एजेंसी के संग क्या हो रहा था, वो रजिस्टर हो रहे थे और ये क्या कर रही थी, एग्जाम कंडक्ट करवा रही थी, एंड टू सर्टिफाई द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशन इन फोर्स ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट एनफोर्स हो रहा था। ये काम था एजेंसीज का। अब बोर्ड आ गया है, तो बोर्ड एक बड़ी चीज है, एजेंसी छोटी सी चीज, एजेंसी का बहुत छोटा सा काम है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एजेंसी कैसे अलग है, बोर्ड कैसे अलग है। तो बोर्ड क्या है, एजेंसी के भी ऊपर है एक तरीके से। तो इट रेगुलेट इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स, रूल्स बना सकता है। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी जैसे मैंने कहा ना, इससे भी ऊपर है। तो अगर आप देखोगे बेसिकली हायरार्की में इसकी बनाऊं, तो अगर पिछले पेज पे जगह है, नहीं इधर जगह नहीं है, तो मैं इधर ही कहीं कोशिश करता हूँ, इधर बना देते कि अगर ये है आपका सपोज सबसे नीचे प्रोफेशनल, आपका सबसे नीचे मान लीजिए यहाँ पर है प्रोफेशनल, प्रोफेशनल के ऊपर कौन आ गया, एजेंसी आ गई, ए फॉर एजेंसी, उसके ऊपर भी क्या आ गया, बोर्ड आ गया। तो बोर्ड क्या है, सबसे ऊपर है, उसके नीचे एजेंसी है, और एजेंसी के नीचे क्या है, प्रोफेशनल। इस तरह से भी आप समझ सकते हो। तो सिंपली आप पिरामिड भी बना के समझ सकते हो कि कौन कहाँ पर है। तो ये जो बोर्ड है ये एजेंसी को भी रेगुलेट कर सकता है, प्रोफेशनल को भी रेगुलेट कर सकता है, एंड इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज इसको भी रेगुलेट कर सकता है टू सेटअप अंडर द कोड। द बोर्ड विल कंसिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसमें कौन कौन होगा, ये इंपॉर्टेंट है, सुन लीजिए। द बोर्ड विल कंसिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई एंड द मिनिस्ट्रीज ऑफ फाइनेंस, कॉर्पोरेट एंड लॉ। देखिए तीनों मिनिस्ट्री का काम है, क्योंकि देखिए पैसा इन्वॉल्व है तो फाइनेंस होना चाहिए, बिजनेस इन्वॉल्व है तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स होना चाहिए, कानून तो है ही खैर तो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ। तो इसको याद रखने का तरीका कैसे आप कर सकते हो कि अगर हम यहाँ पे खाली जगह में इसको आपको समझा रहा हूँ, इस जगह को यूज कर रहा हूँ, आई एम यूजिंग दिस प्लेस टू मेक यू अंडरस्टैंडिंग। सो फार हमने क्या क्या देखा, हमने देखा है, अगर मैं एक पिरामिड ड्रॉ करूं तो सबसे नीचे कौन से इंस्टीट्यूशंस, आई एम टॉकिंग अबाउट इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइडेड बाय आईबीसी। इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइडेड बाय इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। ठीक, हम उसको एक डायग्राम से समझ रहे हैं बस, वो एक चीज पे ध्यान दीजिए। नीचे क्या है आपका, प्रोफेशनल्स, प्रोफेशनल्स के ऊपर क्या है आपका, एजेंसीज, प्रोफेशनल एजेंसीज, ठीक। इसके ऊपर क्या है, इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज, और उसके ऊपर हो गया आपका बोर्ड, बोर्ड, ठीक। ये इसमें एनसीएलटी और डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल डीआरटी वो नहीं आएंगे, क्योंकि देखिए वो कानूनी प्रक्रिया है, वो कोर्ट के दर्जे के बराबर है, राइट। क्योंकि वो कोर्ट है तो कोर्ट इन सब चीजों से बाहर रहती है। ये सब चीजें क्या है, प्रोफेशनल्स हैं, एग्जीक्यूटिव से, ये जो अपॉइंटमेंट, अगर आपको थोड़ा सा आइडिया हो एग्जीक्यूटिव वर्सेस जुडिशरी, तो जो जुडिशरी की चीज होती है थोड़ा सा अलग होती है, मतलब ये जो ट्रिब्यूनल से प्योर जुडिशरी नहीं होते हैं कंप्लीट, बट स्टिल दे हैव एलिमेंट ऑफ जुडिशरी, तो इससे वो अलग है। यहाँ पे अगर आप देखो सबसे ऊपर बोर्ड, बोर्ड इन तीनों को रेगुलेट कर सकता है, बोर्ड इसको भी रेगुलेट कर सकता है, बोर्ड इसको भी रेगुलेट कर सकता है, एंड बोर्ड कैन ऑल्सो रेगुलेट दिस, ये। और बोर्ड में मेंबर किस किस के होते हैं, सो इट हैज मेंबर ऑफ आरबीआई एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ लॉ। ये ड्रॉ कर लो अपनी कॉपी में, आपको इसे याद रहेगा। और ये ऐसे आप ना, अगर कल को आता है क्वेश्चन वगैरह कि व्हाट आर द इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडेड बाय, ये हाउ दिस आईबीसी वर्क्स, तो आप उसमें ये ड्रॉ कर सकते हो। तो मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ, आई एम गिविंग यू 2 मिनट, आप इसको ड्रॉ कर लीजिए और एक बार समझ लीजिए दैट हाउ इट वर्क्स।
सबसे ऊपर है हमारा बोर्ड, उसके नीचे है हमारी इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज़, उसके बाद है प्रोफेशनल एजेंसीज, फिर उसके बाद है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स। तो बोर्ड तीनों को रेगुलेट कर सकता है। एंड बोर्ड हैव मेंबर्स फ्रॉम आरबीआई, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट मिनिस्ट्री एंड मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, जो इसमें लॉ इन्वॉल्व है। तो ये दीज थ्री आर द इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। तो ये एक डायग्राम आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और ऐसी टाइप के डायग्राम ना बनाने चाहिए। अब कई लोग पूछते हैं सर आंसर राइटिंग में क्या डायग्राम बनाना चाहिए, क्या फ्लो चार्ट, इसी तरह से फ्लो चार्ट डायग्राम बनते हैं कि आप अपनी बात को आसानी से कह सको। हमने सारे इंस्टीट्यूशंस देख लिए, प्रोफेशनल्स, एजेंसीज, यूटिलिटीज, एजुकेटिंग अथॉरिटीज एंड ये सब। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये आपको याद रखने के लिए मैंने एक पिक्चर यूज़ की है। इससे पहले डायग्राम तो बना ही दिया, वो भी आपको याद रखना है डायग्राम से। ये भी है, देखिए कि कैसे काम करता है, और ये भी आप देख सकते हो। सो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 क्यों चाहिए हमें? टू स्पीड अप रिजोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस असेट्स इन द कंट्री। जैसे मैंने स्टार्टिंग बताया कि जब हमारा पैसा ब्लॉक है, व्हेन आवर मनी इज ब्लॉक्ड इन अ प्रोजेक्ट, बट टू रन द इकोनॉमी वी नीड आवर मनी इन सर्कुलेशन। अगर हमारा पैसा ट्रैप है जिससे कोई काम ही नहीं हो रहा, तो हम क्या चाहेंगे कि उससे कुछ काम हो, पैसा फंसना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर हम पैसे से हमें औरों के लिए भी रोजगार क्रिएट करना है, हमें अपने भारत को आगे लेके जाना है। सो इन दैट सेंस वी नीड दैट स्ट्रेस असेट्स, का मतलब जो असेट्स बेकार हो गया है, जो काम नहीं कर रहा, पैसा नहीं आ रहा है, स्ट्रेस असेट टू स्पीड अप रिजोल्यूशन। तो इसका काम क्या है? टू स्पीड अप रिजोल्यूशन स्ट्रेस असेट। जैसे मैंने पहले कहा, अगर ये नहीं होता, ये अभी नहीं था, तो चीज़ें कैसी चल रही थी? ठीक है, लौटा देगा पैसा, कहाँ भाग रहा है, दे ही देगा, उस तरीके से चल रही थी। लेकिन अभी ये है तो स्पीड अप हो गया। हम कोर्ट के पास गए, ट्रिब्यूनल के पास गए कि सर प्लीज इसको करवाओ, प्रोफेशनल्स के पास गए, यार इसका कुछ करवाओ। दैट वे हु विल सी एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल्स, पार्टनरशिप्स, लिमिटेड लाइबिलिटीज, फर्म पार्टनरशिप्स एंड कॉर्पोरेट। तो देखिए कौन कौन इसमें है, मैंने अपने से पहले डिस्कस किया। कैटेगरी कौन कौन से लोग हैं? इंडिविजुअल, किसी कोई इंसान भी डेट में हो सकता है। एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको अनिल अंबानी का एग्जाम्पल दिया। पार्टनरशिप्स हो सकती है, मान लो 2-3 दोस्तों ने कोई काम शुरू किया, नहीं चल पाया। एलएलपीज का यहाँ पे मतलब है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। तो आप लोग को ये लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप पढ़ना है। ये इंपॉर्टेंट है कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का कंसेप्ट गवर्नमेंट क्यों लेके आई, क्योंकि पहले तो नॉर्मल पार्टनरशिप है ही है, तो फिर एलएलपी क्या आई। अगर आप देखो यहाँ पे ऑलरेडी वर्ड पार्टनरशिप है, तो लिमिटेड लायबिलिटी किस सेंस में लिमिटेड है? मतलब रिस्क को लेके लिमिटेड है, या राइट्स को लेके लिमिटेड है, या प्रॉफिट को लेके लिमिटेड है? कि आपको लिमिटेड राइट्स मिलेंगे, या आपको लिमिटेड रिस्क कवर करना है, या आपको लिमिटेड प्रॉफिट मिलेगा? कि किस लिमिटेड क्यों है ये? मतलब सो लिमिटेड लायबिलिटी इन व्हाट सेंस? लोन्स को लेके, रिस्क को लेके, कैसा? तो वो चीज। एंड कॉर्पोरेट मींस कंपनी तो है ही। फिर तो ये कैटेगरीज है। पूछ सकता है आपसे कि कौन कौन इसको यूज कर सकता है, ये किसके खिलाफ ये आईबीसी यूज हो सकता है। व्हेन, कब होगा ये आईबीसी यूज? कब होगा? अथॉरिटी टू डिसाइड इंसॉल्वेंसी एप्लीकेशन विद इन 180 डेज, 90 डेज एक्सटेंशन अलाउड। सो आप एप्लीकेशन दे सकते हो कोर्ट में, एनसीएलटी के सामने, डेट रिक्रूट ट्रिब्यूनल के सामने, कि सर हमें इंसॉल्वेंसी के लिए अप्लाई करना है, और सर हम करते हैं। देन दे विल अपॉइंट अ पर्सन, दे विल सी कि हाँ भाई इनको इंसॉल्वेंसी की जरूरत है कि नहीं है, या ये केस इंसॉल्वेंसी लायक है या नहीं है, पहली चीज। तो उसको डिसाइड करने के लिए ये आप याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। 180 डेज का टाइम है वैसे नॉर्मल, अगर जरूरत पड़ी तो 90 डेज का हम एक्सटेंशन दे सकते हैं। तो उसको खत्म करने के लिए जो ये पूरी प्रक्रिया है, इसको हम 90 + 180 डेज दे सकते हैं टू डिसाइड इंसॉल्वेंसी एप्लीकेशन। ठीक है,
ये कभी बार पूछ सकते हैं। और फास्ट ट्रैक प्रोसेस ऑफ 90 डेज अवेलेबल फॉर स्पेसिफाइड एंटिटीज, इसमें एक और है, देखिए ये तो नॉर्मल केस हो गया 180 डेज और 90 दिन का एक्सटेंशन, और कि चलो ठीक है अगर 180 दिन में काम नहीं हो पाया, आपको पता है कि सरकारी काम कैसे होते हैं, टाइम पे कभी नहीं होते, तो उसको हम एक्सटेंशन करते ही हैं कि ठीक है सर कुछ दिन की मोहलत और दे दो, तो मोहलत का समय 90 डेज ही है, ऐसा नहीं मोहलत देती रहेंगे कि हाँ आई और ले लो 6 महीने और ले लो 6 महीने, नहीं, काम करके भी देना है। फास्ट ट्रैक प्रोसेस ऑफ 90 डेज अवेलेबल फॉर स्पेसिफाइड एंटिटीज, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि कुछ केसेस में हो सकता है जहाँ पे पैसा बहुत ज़्यादा लगा हो या कुछ ऐसी एंटिटी जो बहुत ज़रूरी है कि भाई इसका जल्दी निपटारा करो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिजनेस सेक्टर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंपनी, और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एसेट विच नीड टू बी फाइनलाइज एट द अर्लीस्ट। तो ऐसे केस में फास्ट ट्रैक, जैसे आपने सुना होगा, मैनी ऑफ यू हैव हर्ड अबाउट फास्ट ट्रैक कोर्ट टू fast track the cases of rapes and other cases also against this. So court has also asked to set up fast track court against convicted MPs MLAs जो हमारे corrupt politicians हैं उनको अभी करने के लिए, तो उसी वे में यहाँ पे भी फास्ट ट्रैक आप कर सकते हो। वो कितने दिन में होना चाहिए? 90 डेज, ठीक। लेकिन हर किसी के लिए नहीं, स्पेसिफाइड एंटिटीज। देन हाउ एजुकेटिंग अथॉरिटी है वहाँ पे, NCLT फॉर कॉर्पोरेट, DRT में हमने पिछले डिस्कस कर ही लिया है कि NCLT फॉर कॉर्पोरेट, आई एम राइटिंग वंस मोर सो दैट ऑल ऑफ यू रिमेंबर, NCLT फॉर व्हाट? NCLT फॉर कॉर्पोरेट्स और कंपनीज, सो इट इज फॉर कंपनी, एंड DRT डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल फॉर व्हाट? इंडिविजुअल और अ पर्सन। इफ any one of us become defaulter then it is applied to us, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये पिक्चर समझ में आया हो। इज इट क्लियर और नॉट? जल्दी से बताइए, ये क्लियर है या नहीं है? टेल मी, इज इट क्लियर और नॉट? ओके फाइन, अब बढ़ते हैं आगे। ये एक पिक्चर है, बहुत ही अच्छी पिक्चर लगी मुझे ये, आई होप कि आपको भी लगे। तो पिछला हमारा IBC बारे में जो मैं नॉलेज देना चाहता था आपको वो है, आप उसके बारे में एक्स्ट्रा भी पढ़ सकते हैं अपने एंड पे भी, लेकिन हमारे काम की जो भी चीज़ थी वो हमने डिस्कस कर ली कि कैसे IBC इम्पॉर्टेंट है हमारे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए, कैसे इकोनॉमी के लिए, कुछ भी तरह से UPSC घुमा के पूछ सकती है, और उसका जो स्ट्रक्चर क्या है वो हमने देख लिया कि कैसे ऐसे इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व हैं। बाकी उसके और भी आस्पेक्ट है कि IBC कितना सक्सेसफुल हुआ, कितना नहीं हुआ, इससे फ़ायदे क्या है, नुकसान क्या है, वो काफ़ी डिटेल चीज़ है, वो आप अपने एंड पे पढ़िए, लेकिन पढ़ना जरूर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो। नेक्स्ट है फोर्थ सबमरीन ऑफ प्रोजेक्ट 75 INS वेला। INS वेला, विला जो भी आपको बोलना है बोलिए, कमीशन एट नेवल डॉकयार्ड मुंबई। तो इसमें ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि कहाँ कमीशन हुई है, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि पहली चीज कि व्हाट इज प्रोजेक्ट 75 एंड व्हाट इज INS वेला। तो मुझे कमेंट में बताइए किसको पता है कि प्रोजेक्ट 75 क्या है, जल्दी से प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स दैट व्हाट इज प्रोजेक्ट 75, बताइए। बाकी सबमरीन है लिखा है ऊपर, फोर्थ सबमरीन ऑफ प्रोजेक्ट 75 INS वेला। तो इसका नाम INS वेला, ये तब का फोटो जब ये अभी रिसेंटली कमीशन हुई है, इसका जब इसको फ्लैग ऑफ किया गया, तो आप देख सकते हो काफ़ी बड़ी सबमरीन है, और सबमरीन्स आर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आर सिक्योरिटी आर्सेनल। और अगर आपको वर्ल्ड वॉर 2 की कहानी पता हो तो सबमरीन्स ने काफ़ी बड़ा रोल प्ले किया था। जर्मनी की जो अपनी सबमरीन्स थी, और उसकी वजह से हिटलर ने जो सबमरीन्स बनाई थी अपने टाइम पे, वो उनका काफ़ी बड़ा रोल था जर्मनी की पावर में। फिर उसके बाद ब्रिटेन की भी अपनी सबमरीन्स थी, बिकॉज दीज टू आर नेवल पावर्स, दीज टू वर द नेवल पावर ड्यूरिंग दैट टाइम ऑफ वर्ल्ड वॉर 2। तो सबमरीन समुद्री रास्ते से जब भी चीज़ें होती हैं टू सिक्योर योर ट्रेड रूट, सी रूट, उस केस में भी और वॉरफेयर में भी
तो उसी लाइन में ये बनाया गया है। हाँ बताइए प्रोजेक्ट 75 क्या है? ठीक है, ओके, सो वी विल सी कि है क्या, राइट। तो ये पिक्चर है, देखिए फोटो दिखाने का पर्पस यही रहता है कि आपको एक दिमाग में आइडिया हो जाए कि हाँ ये कुछ सबमरीन ऐसी चीज़ हमने देखी थी, पढ़ी थी। और ये है आईएनएस वेला, नाम याद रखिएगा कि 4th नंबर पे कौन सी थी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है यूपीएससी मैच द फॉलोइंग में दे देगा कि 3rd कौन सी थी, 4th कौन सी थी, या आईएनएस वेला क्या है, सबमरीन है, शिप है, या कोई एयरक्राफ्ट है, इस तरह से। इंडियन आईएनएस का नेवल शिप, इंडियन नेवल शिप हो गया वेला, बट क्या सब है ये, टॉर्पेडो है या ये सबमरीन है क्या, मतलब पनडुब्बी है या सबमरीन है। तो ये से कुछ खास है। द सबमरीन्स इन द प्रोजेक्ट 75 स्कॉर्पियन क्लास आर पावर्ड बाय डीजल इलेक्ट्रिक। तो देखिए प्रोजेक्ट 75 को मैं थोड़ा सा एक आइडिया में बता दूं कुछ कि प्रोजेक्ट 75 एक्चुअली एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया सबमरीन्स को डेवलप करने के लिए, और इसमें हमारा जो कोलैबोरेशन है वो फ्रांस के साथ रहा है। हम फ्रांस की हेल्प से ये सबमरीन डेवलप कर रहे हैं ताकि एक हम जो हमारी स्ट्रेंथ है नेवी, नेवल स्ट्रेंथ, उसको हम फर्दर इक्विप्ड कर सकें। आपको पता है इंडियन नेवी इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट नेवी स्पेशली इन इंडियन ओशन रीजन। उसको फर्दर, कि पहले क्या था, हम सबमरीन्स हम लीज पे लेते थे या हम प्रोक्योर करते थे, कहाँ से, रशिया से, अब भी हम लेते हैं रशिया से। तो वो क्या, लेकिन हम आपको पता है कि जो अभी तो चलिए आत्मनिर्भर भारत हमने डिक्लेयर कर रखा है, गवर्नमेंट का कोई भी देश चाहता है कि इंडिपेंडेंट होना, यानी एवरी कंट्री वांट्स टू रिलाई ऑन इट्स ओन टेक्नोलॉजी, क्योंकि फ्यूचर वी नेवर नो कि हमारे किसी कंट्री से रिलेशन कैसे हों। सो टू रिड्यूस इम्पोर्ट एंड टू डेवलप आवर ओन टेक्नोलॉजी सो दैट वी कैन हैव एज ओवर अदर्स, सो इट्स बेटर टू डेवलप आवर ओन। तो ये जो है द सबमरीन द प्रोजेक्ट इट इज पावर्ड बाय डीजल इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम। तो ये इंपॉर्टेंट है। देखिए सबमरीन न्यूक्लियर पावर्ड भी हो सकती है, जैसे अगर आपने आईएनएस अरिहंत के बारे में सुना हो, इफ एनी वन ऑफ यू हर्ड अबाउट आईएनएस अरिहंत, इसके बारे में पढ़िएगा, ठीक है। तो उसको देखिएगा ये कैसे पावर्ड है अरिहंत, ठीक। सो कोई न्यूक्लियर पावर्ड भी हो सकती है, कोई डीजल इलेक्ट्रिक भी हो सकती है। तो ये दिस इज डीजल इलेक्ट्रिक। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि हमें ये गलती नहीं करनी कि क्वेश्चन में अगर आया कि आईएनएस वेला इज पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट 75 एंड दूसरा स्टेटमेंट आया दैट आईएनएस वेला इज न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन, और आपने मार दिया करेक्ट कि हाँ ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। इट इज डीजल इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम। इट इज अ प्रोग्राम बाय इंडियन नेवी दैट एंटेल्स बिल्डिंग 6 स्कॉर्पियन क्लास। तो इसमें ये भी है, जो ये प्रोग्राम प्रोजेक्ट 75 है, इसमें हमें कितनी बनानी है, 6 स्कॉर्पियन क्लास। ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए स्कॉर्पियन क्या है ना, फ्रांस की काफी फेमस सबमरीन है, काफी पावरफुल, वन ऑफ द हाईली सोफिस्टिकेटेड सबमरीन्स इन द वर्ल्ड, ठीक। तो उस सेंस में हम भी उसी तर्ज पे इन दैट लाइन ओनली वी आर ट्राइंग टू डेवलप सबमरीन्स इन इंडिया, जो 6 आर नंबर, ये आपको याद रखना है। द मजगांव डॉक लिमिटेड इज मैन्युफैक्चरिंग 6 स्कॉर्पियन सबमरीन विद टेक्नोलॉजी असिस्टेंस फ्रॉम नेवल ग्रुप ऑफ फ्रांस अंडर अ $3.75 billion deal signed in October 2005. So basically deal signed in October 2005. So if question may be asked that recently this deal is signed by India with France, or no. So this is not recent, this is almost 16 years old. This is October 2005, right now we are living in December 2021. So it is almost 16 years back. तो आपको ये चीजें याद रखनी है, यू हैव टू कीप दीज थिंग्स इन माइंड बिकॉज वी नेवर नो दैट व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन यूपीएससी में आस्क इन द फ्यूचर. So by looking at that thing, we should look at this, that okay, this is not about this figure. You need not to remember this $3.75 billion figure. What you need to remember is that this is 6 Scorpion submarines with technology assistance from Naval Group of France. So who is assisting? France, as I mentioned few minutes back, and who is manufacturing is Mazgaon Dock Limited. So within defense there are some PSUs, so it is one of the PSU. What is this Mazgaon Dock Limited? It is a PSU under Ministry of Defense, public sector unit
working for this construction and development of these naval ships. So it is a PSU under Ministry of Defense. Then deal signed in October 2005. Two submarines, Kalvari and Khanderi, have been commissioned into the Indian Navy. So this is the fourth one. Two already commissioned. What are they? Kalvari and Khanderi. So you can see that two, and the fourth one, that is the means other one is Vagir, which is under this trials, right? And 1, 2, 3, 4, yeah. And having commissioned India, the sixth one, INS Vakshir, is under construction, right? So this way you can see that two have been commissioned. Scorpion Vagir is under trial. So this Vagir is under trial. The sixth one, INS Vakshir, is under construction. So another one is under construction. So basically this is fifth, this is sixth, right? So one is missed. So tell me that what is the third one, because this is the fourth one. This is the fourth one. So tell me the third one. Tell me the third one, because I have missed it. So, and I have deliberately missed it so that you people tell me that what is the name of third. थोड़ा मेहनत कीजिए. बताइए. Deliberately I have missed it from here. ताकि कितने लोग आप में से इस चीज को पॉइंट आउट करें कि सर वो थर्ड वाली तो है ही नहीं इसमें, फोर्थ की आप बता रहे हो फोर्थ के बारे में, दो पहले कमीशन हो चुकी हैं, तो फिर थर्ड वाली कहाँ है? थर्ड भी हो चुकी है. थर्ड कौन सी है बताइए. जल्दी देखता हूँ कौन है, कौन बता रहा है. लेट मी चेक हु इज. यस, थर्ड इज INS Karanj. Karanj is the third one. So have you noted one thing, that first three name started with K? Kalvari, Khanderi, sometimes it is written Kanheri also, and Karanj. So 3 out of 6, 3 start with K and 3 start with V. So Vela, Vagir is under trial and Vakshir is under construction, right? So K and V, okay? This thing you should smartly should see. इस तरह से हमें देखना चाहिए. हाँ, चलिए क्वेश्चन करिए. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द साइंस एंड इनोवेशन काउंसिल. ये एक अच्छा क्वेश्चन है, चलिए करिए. लेट मी सी कि कितना आपको पता है, कितना आप पेपर पढ़ रहे हो सीरियसली. हाउ मेनी ऑफ यू आर रीडिंग न्यूज़पेपर, करंट अफेयर्स प्रॉपरली. चलिए करिए, मैं आपको हट जाता हूँ साइड से सो दैट यू कैन रीड द क्वेश्चन. चलिए. क्वेश्चन है आपका, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू द साइंस एंड इनोवेशन काउंसिल. पहला स्टेटमेंट बोल रहा है इट इज एन एपेक्स बॉडी टू मॉनिटर एंड रिव्यू साइंटिफिक प्रोजेक्ट बिटवीन इंडिया एंड रशिया. दूसरा, इट इज एस्टेब्लिश्ड अंडर द परव्यू ऑफ नीति आयोग. इट विल मीट ट्वाइस एनुअली. तो लेट मी सी हाउ मैनी ऑफ यू आर एबल टू सॉल्व इट. Let me see your current affairs. How many of you are reading your newspaper properly? Or have you ever gone through this kind of news? और UPSC आजकल आप देखोगे अगर prelims का paper, if you see your previous year papers of prelims, then you will find that sometimes these kind of questions have been asked, which generally we do not expect. So tell me your answer.
Okay. So answer I will tell you later, and I will again ask you to attempt this. This is just why I have given answer in the beginning, to see whether you can see that what kind of question can be asked. Because what happens after going through the news, after going through the article, it becomes easier to answer. फिर तो अगर आप मैंने आपको बता दिया इसका सपोज, फिर तो आप आंसर कर ही दोगे. बट पहले भी थोड़ा पता होना चाहिए ना कि आप कितना पेपर अच्छे से पढ़ रहे हो, आप कितना चीज़ों को ध्यान दे रहे हो. इफ़ यू आर seriously preparing for civil service exam, that whether you are catching these things or not, and that's why this PIB sessions are very important. अगर आप देखो ये इस टाइप के क्वेश्चन फंस जाते हैं. लास्ट ईयर ऑल्सो काफ़ी क्वेश्चन ऐसे थे जो IAS में पूछे गए थे. So if you follow these things properly, then definitely you will be in a good position as compared to your peers. तो इसका आंसर मैं बाद में बताऊंगा, अभी नहीं बता रहा हूँ. अब डिस्कस करते हैं कि न्यूज़, उसके बाद दोबारा इस पे आएंगे, आपको खुद पता चल जाएगा कि ये कैसे, इसका आंसर क्या होना चाहिए. सो इंडिया सपोर्ट्स द वन हेल्थ अप्रोच टू काउंटर फ्यूचर चैलेंजेस लाइक करेंट पेंडेमिक एज द थीम फॉर द नेक्स्ट S20 समिट टू बी हेल्ड इन इंडिया. ओके, तो ये कंटेक्स्ट क्या है, बेसिकली कहाँ से ये आया कि इंडिया सपोर्ट्स द वन हेल्थ अप्रोच टू काउंटर द फ्यूचर चैलेंजेस लाइक करंट. तो अभी मैं आपको बताऊंगा वन हेल्थ क्या है. आप लोग तब तक कमेंट में लिख भी सकते हो, और आपको किसी को पता ही व्हाट इज दिस वन हेल्थ कंसेप्ट, और ये वन हेल्थ का कंसेप्ट आया कहाँ से, और ये इसका ओरिजिन क्या है, या ये वन हेल्थ है क्या एक्चुअली. चलिए ओरिजिन छोड़िए, ओरिजिन तो मैं आपको बता दूंगा, बट यू शुड हैव द आइडिया दैट व्हाट इज दिस वन हेल्थ कंसेप्ट. what do you mean by this one health? If somebody ask you that being a civil servant, civil service aspirant, what is one health? So can you tell us, can you brief us? So in that situation you should be able to tell them that this is the meaning of one health. So if you have that idea, then you can kindly tell me in the your chat box or comment box. So by the time I am explaining other things, so this is the context. India supposes a one health approach to counter future challenges like current pandemic as the theme for next S20. What is S20? Anyone can guess it? What is S20? Can anyone guess it? Or anyone have idea that what is S20? Tell me. बताइए. S20? Any idea? So S20 is basically within G20. Because G20 summit is appearing, so within G20, this G20 next year, we are talking about next year, and I hope many of you know that in 2023 India is going to host G20 summit, right? Recently in Saudi Arabia, but in 2023 India is going to host G20 summit. So you should know these things. In 2023 India gonna to host G20 summit in India for the first time. This is very important, very historic moment also, because we are in that league of the country who are hosting such big event, and G20 is a grouping of large top 20 economies, and India is going to host it for the first time. And when? In 2023. So within this G20, S20 is a group. S20 is a group within G20 which works for the science. It is group of science 20. This is economic group, means basically it covers so many things, but it is economic grouping. But within that there is another group is formed. It is known as science group. So S stands for science, S20, and people from these 20 countries and science experts participate in this S20. So S20 summit to be held in India next year. This is for the next S20 summit to be held in India. For that, India is supporting One Health concept. This is the overall meaning of this thing. So I hope you see this. So I hope you appreciate this thing, that how many of you knew this thing? G20 सबने सुना है. How many of you knew this S20 before this? Right? So this is the thing. This is the thing which we are learning through this thing. So S20 within G20. So science ministers from India and UK discuss green energy collaboration. So who have discussed? India and UK. So in previous question I asked
Science and Innovation Council, right? So a question was asking India and Russia, but you can say India and UK, so that statement is wrong. अब आपको अपने क्वेश्चन का आंसर मिलता जाएगा. Science and Innovation Council is a apex body to review overall bilateral scientific cooperation except strategic sector between two countries. And who are the countries? India and UK. Look at these two countries, India and UK. And it held once in 2 year. तो आपका जो थर्ड स्टेटमेंट है वो भी गलत है. उसमें क्या लिखा था? ट्वाइस एनुअली. लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? 2 साल में एक बार. वहां पे उल्टा लिखा था 1 साल में 2 बार. सो यू हैव टू सी दिस थिंग्स. तो ये गलत हो गया, राइट? And it is under Department of Science and Technology. Department of Science and Technology is the body which look after it. So it is Department of it is Department of Science and Technology, and right, Ministry of Science and Technology within that. So it is not Niti Aayog. So now you got the answer. Now you got the answer that why also all the 3 statements are wrong in previous case. So now attempt the question. Then I will tell you what is One Health. Now see. So it is an apex body to monitor and review scientific project between India and Russia. No. So kya tha? What we just saw. It is not Russia. It is UK. So it is not Russia, it is, sorry, yes, so it is not Russia, it is UK. Okay, it is established under the purview of Niti Aayog. No, अभी मैंने क्या बताया? The just few seconds back I told you it is Department of Science and Technology, DST. Okay, it is not Niti Aayog. It will meet twice annually. No, it will meet once in 2 years. So it is wrong. It is once in 2 years. Right? So all these statements are wrong. So correct answer is D. So I hope all of you learned it. All of you appreciate this. So this is good way or not to learn the things? Tell me, this is good way or not to learn the things? क्या ये अच्छा तरीका है या नहीं है चीज़ों को सीखने का? Tell me this thing, because this is my approach. खाली कहानी सुनने नहीं आना है, अप्लाई करना भी आना चाहिए. UPSC simply does not want you to rote the things. Rote learning is not required. UPSC does not want that one who simply cram the things. यूपीएससी वो रट्टू तोते नहीं चाहिए. यूपीएससी को चाहिए जो अप्लाई कर सकें, समझ सकें. एंड दैट्स व्हाई आई एम ट्राइंग टू गिव यू दिस थिंग. आई होप कि आप सबको ये चीज समझ में आए. ओके, सो दिस इज द थिंग. सो एक बार ये न्यूज थी. सो साइंस एंड इनोवेशन काउंसिल इज एपेक्स बॉडी टू रिव्यू ओवरऑल बायलैटरल साइंटिफिक कोऑपरेशन बिटवीन 2 countries and it is held once in 2 years. अब हम आते हैं जो ऊपर वर्ड रेड लेटर से मैंने वो कर रखा है रेड. वन हेल्थ क्या है? तो आप लोगों को मैंने टाइम दिया था कि आप लोग बताइए वन हेल्थ क्या है. तो उसको एक बार देख लेते हैं वन हेल्थ क्या है. सो दिस इज वन हेल्थ. डायग्राम मैंने आपको बताया है, इसलिए मैंने यहाँ पे एक पिक्चर भी आपके लिए ली हुई है. डायग्राम नहीं, पिक्चर में ली है. डायग्राम तो एक छोटा सा है कि वन हेल्थ इज अबाउट not taking human being in isolation or one system in isolation. One health means everything is one. When we say one world, one planet, right? So similarly, one health means it covers everyone. Everyone is one in that sense. So it covers human health, animal health and ecosystem. हम हमारे आसपास की सारी चीजें, इट इज वन हेल्थ. अगर हमारे आसपास कोई बीमार होगा तो हम बीमार होंगे, हम बीमार होंगे तो हमारे आसपास जो होगा वो बीमार होगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर एनवायरनमेंट बेकार है, जैसे अभी दिल्ली में प्रदूषण चल रहा था, अभी भी है ही है, ठीक है, अभी भी एयर क्वालिटी इतनी साफ नहीं हुई है. और अदर मेट्रो सिटी में भी पॉल्यूशन ज़्यादा है. ऐसा नहीं कि जो लोग दिल्ली में नहीं रहते वो लोग खुश हो रहे हैं कि हाँ दिल्ली में पॉल्यूशन है, और पॉल्यूशन वहाँ पे भी है, ठीक है. ज़्यादा इसलिए खुश होने की जरूरत नहीं है, पॉल्यूशन पूरे वर्ल्ड में ही है. ओके,
So what I am trying to say that if suppose आपके आसपास कूड़ा पड़ा हुआ है, तो जाहिर सी बात है आपका इकोसिस्टम खराब है. इकोसिस्टम, यू नो, सराउंडिंग्स अराउंड यू विच कवर्स लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स दोनों. अब आपके इकोसिस्टम में अगर कूड़ा पड़ा हुआ है, अगर उससे कोई गंदगी फैलती है कुछ भी, तो वो आपको इम्पैक्ट करेगी. ठीक ऐसी अगर आपके घर में कोई पेट है, या आपके घर में कोई, या आपके सराउंडिंग में कोई ऐसा है कि कोई जानवर है वो बीमार है या उसमें कोई भी परेशानी है, तो आपको इम्पैक्ट करेगी. और इसके एग्जांपल आपके सामने हैं ही कई सारे. पहले स्वाइन फ्लू हुआ, बर्ड फ्लू हुआ अभी रिसेंटली जो आपका ये कोरोना चल रहा है, तो पीपल से दैट चाइना के उसमें जो मार्केट था उसमें आपका पिग से आया, वुहान से. बोल रहे ना कि वुहान में जो पिग मार्केट था, तो ये पिग से आया है. कई बीमारी आपने देखा हुआ रेट से आती थी, रेट में था. कैन एनीवन टेल मी द नेम? ड्यूरिंग हिस्ट्री ऑल्सो वेरी फेमस disease was there which spread due to rat. उस समय महाराष्ट्र में बहुत बवाल हुआ था इसको लेके, और जो आपके बाल गंगाधर तिलक थे उन्होंने इसके लिए काफ़ी आवाज़ भी उठाई थी. काफ़ी लोग इससे परेशान थे. कोई मुझे बता सकता है कि वो बीमारी क्या थी? लेट मी सी कि हाउ मेनी ऑफ यू हैव रेड हिस्ट्री एंड यू आर फॉलोइंग द थिंग्स सीरियसली. कैन एनीवन टेल मी? जस्ट गिव मी एन आइडिया. ओके, नाउ आई एम टेलिंग यू. बाकी आप लोग टाइप करते रहिए. सो द डिसीज वॉज प्लेग. प्लेग का नाम आपने सुना होगा आई थिंक. सो दिस प्लेग rattled the Maharashtra during early 19th this 20th century and late 19th century, and Bal Gangadhar Tilak raised the voice, and plague commission was also there. So अगर आप बात करो तो 1890s की बात है. उस समय प्लेग बहुत फैला हुआ था महाराष्ट्र में, और at that point of time plague commission was also established to control this disease, plague disease, right? So rat से होती है. So yeah, I am just giving an example for you to understand. So human health, animal health and ecosystem are inextricably linked, and you can see the linkage, and I have just given you the example, right? कि अगर गाय, भैंस, मुर्गी, कोई भी जानवर हो सकता है, कैट, तो अगर वो बीमार होगा तो आप बीमार होगे, आप बीमार होगे तो वो बीमार होगा. ऐसी पर्यावरण, अगर कोई बीमारी पेड़ों में है, कोई बीमारी खाने से भी होती है. अगर आप मान लीजिए गेहूँ है, फसल है, अगर वहाँ पे कोई बीमारी फैल रही है तो कहीं ना कहीं वो हमें भी इम्पैक्ट करेगा. तो इसलिए वन हेल्थ में हमें सबका ध्यान रखना है. ऐसा नहीं कि खुद अपना सुरक्षित हो गए, हमने डोज लगवा ली, हमें कोरोना से सुरक्षित हो गए तो सबका हो गया. हमें अपने जानवर, इसलिए आप देखिए वेटरनरी डॉक्टर्स जो होते हैं, गवर्नमेंट ने वेटरनरी डॉक्टर्स के लिए, लाइव स्टॉक के लिए कितने सारे प्रोग्राम चलाए हुए हैं, है ना. बोलते हैं मवेशियों को, लाइव स्टॉक हिंदी में क्या बोलते हैं? मवेशी. So in that case we have to take care, and right now you know that we are working for the health of the environment as well. So we cannot see things into the isolation. We should see things into as a combination of the components. गाड़ी के ऐसे दो पहिए होते हैं, ऐसी हमारी गाड़ी के तीन पहिए हैं यहाँ पे. So we have 3 wheels in our cart. Usually cart has 2 wheels, but our cart is special one. We are a 3-wheeler. हमारे पास क्या 3-wheeler है. So in that sense, all the 3 wheels are important. Environment, our animals, and our own, we humans, right? So human health, at least 60% of all human diseases have their origin in animals. तो आप देखो ज़्यादा बीमारियाँ सब जानवर से आई हैं. अभी मैंने एग्जांपल दिया आपका इबोला हो गया, ठीक है. आपका निपा वायरस बैट से हुआ था, केरला का एग्जांपल. हाउ मेनी ऑफ यू न्यू दिस अबाउट दिस निपा वायरस? लास्ट ईयर काफ़ी न्यूज़ में था Nipah virus. Then monkeys disease, right? And rhesus monkey. There is another disease which is prevalent in South India. I'm just not able to recall its name. That is from monkey. Kaiser syndrome, or like any fever. Can anyone tell me in the chat box? I will see. So, right. And recently this coronavirus, then I told you swine flu, bird flu. So these are some popular ones. There are so many, and I have given this plague also, right? So these are popular ones. So you can see, okay.
Then animal health, diseases in food producing animals globally amount to a 20% loss in production. So again, usually if your cow or your buffalo fall ill, then ultimately it impacts your production of milk, production of, similarly if your poultry gets infected. In this swine flu case and this bird flu case, your poultry sector severely impacted. Means if you any one of you who went on for this marketing for or to purchase this raw chicken, and for that buying or purchasing non-veg, you might have seen that thing, that rate of the things came down. People were not purchasing these defected things because there was a fear that it may also have disease. That kind of fear was there at that point of time. So it impacts the production. Means whether it's this poultry, whether it's your pig, whether it is your milk production, somewhere it impacts. Ecosystem, any emerging disease in the last 30 or 40 years result from encroachment into the wildlands and changes in demography. So if you see, if you are clearing the forest, if you are changing the landscape, for example, at any place there is some crop which naturally grown there, you have introduced some other crop which is not suitable to that climate, so again it impacts. So ecosystem also contribute, and then last 30-40 years this has been increased due to construction activities also. So overall this is about One Health. I hope all of you now get the idea. So now this is about One Health. So I think we will discuss for the next question onward in the next class, because it will take time. So already time is almost over right now. So tomorrow we will discuss further topics. I hope that you will get the idea that on what line we have to prepare, and when I am discussing question along with you, when I am asking questions to you, so this is the way to learn the things, and I hope that you are enjoying this, right? So with this I am taking leave. So read well, read the way I am telling you, read properly, read, and while reading also keep enjoying, right? With this take care of yourself, study hard. We will meet again tomorrow. Okay, so thank you all of you.